all the trainees to call your friends and ask them to join. And this is first day, so we all are waiting for that. Otherwise, we are not going to wait. We will be starting right at 3:30, right? So welcome Garima ji for this program, and we are very happy that you have collaborated with us for this program. And the name of this program is inclusive teaching of whole number understanding. And I really feel that this is very important, especially at this point of time. The reason being because in NEP 2020 we all are looking forward for foundational literacy and numeracy. And your topic is very important because it's topic about talking about inclusive teaching. It's talking about whole number understanding. And one more big thing is, as a student, I may not be knowing some of the concepts, but when I am supposed to be a teacher, I should have that understanding and I should know the concept very well. So this is the need of the hour, that all of our trainees should be aware with and engage themselves with this content. They should develop the pedagogical knowledge and understanding, how they can take this foundational literacy to the students, to the school, and develop the TLM related with that, and how they are supposed to incorporate this in their lesson plan. So we can say that numeracy is important for developing logical thinking and reasoning, even in our daily life. And when we are going to be the teachers, when we are supposed to teach the students, it is at most important. So keeping that in mind, I really feel that all of our students are really going to benefit out of this. And we are blessed that at this such a need of the hour, you are there with us, and you have come up with such a big program and a solution for us that is really going to help us promote NEP 2020. Thanks a lot, Garima ji. And Garima ji is from Ajimji Premji Foundation. It's a very, very well and renowned NGO that's working for the education and especially the early education and all these purposes. And I'm so happy that you came up with such a noble idea that you are going to help our students in this matter. And I just want to say to my students, you need to be very attentive, and you are supposed to finish all your assignments related to it. And Garima ji, as it has been decided with among us, that we are going to give the grades also, right? So, and very soon our principal sir, Dr. Rajesh Kumar, is also going to join this program. And as soon as he joins this program, we'll ask him to address the students also. So Garima ji, once again, the heartiest welcome to you. And I'm so thankful that you are there with us and you're going to share wonderful activities and TLM for you. Now over to you, Garima ji, and it's all your platform. Please feel free to share and do the things with students. Thank you, ma'am. Thank you for the wonderful introduction. And thank you, students, for joining in with such enthusiasm. I know the online mode. And I'm hoping, that this workshop will keep you intact, not only because of your grades, but I hope you'll find it interesting. Okay, something, just to break ice, let me hear from students. Are you comfortable in Hindi and English? Can I switch medium between the two, or do you want me to stick only to a particular language? In both medium, we are comfortable. Ma'am, bilingual, okay. Bilingual is okay. Okay. And anyone of you who is comfortable coming on video, ताकि मेरे को एक black screen ना दिखे जिससे मैं बात कर रही हूँ या अपना चेहरा ना दिखे. I've been seeing my face since I was born, so I'm bored with it. Okay, ma'am. So I can have other faces if your bandwidth, allow you. And third thing is, see, जितना interactive रखेंगे उतना better होगा. And I feel, I'll be putting down a lot of questions to you. Hi, thank you for the gesture. Thank you for turning on your video. मैं बहुत सारे points छोड़ती हुई जाऊंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, तो I suggest you, मैं आप लोगों की तरह एक program से निकली हूँ. मैंने भी अपना BLEd किया,
डिप्लोमा कर रहे हैं, मैंने उसी सेम सिमिलर प्रोग्राम में बैचलर्स कर रखा है। तो मैंने उधर जो गलतियां करी, उधर जो मैंने एक्सपीरियंसेस लिए जो मेरे को लगा फायदेमंद है, नुकसानदायक है, या जो मैंने तब नहीं सुना अपनी टीचर्स की बात, हम लोग होता है ना बहुत सारी बातें अनसुनी कर देते हैं, वो तब नहीं सुनी, बट लेटर आई रियलाइज कि यार ये तब इम्पोर्टेंट था, अब मेरे को करना पड़ रहा है वाली चीजें। आई विल बी पुटिंग डाउन दोज थिंग्स। मैं लूजली क्लास में बोलती रहूंगी, एंड आई रियली अप्रिशिएट अगर आप अटेंटिवली सुन रहे होंगे, यू विल बी बेनिफिटिंग मच मोर देन दिस, you'll be benefiting much more than what the topic is saying. Inclusive mathematics teaching, it would be much more than this. So I really request everyone कि attentively सुनना, जहां दिक्कत होती है हाथ खड़ा करो, अनम्यूट करो, पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्वेश्चन पूरा अच्छा गंदा कुछ नहीं होता है, questions have no adjectives attached. ठीक है, should we start the session? Okay, ma'am. Yes. I'll share my screen. Yeah. So you all are able to see my screen? Yeah. Okay. So we'll start. I'll quickly take you to कि आज हम क्या क्या करना चाहते हैं, बेसिक हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे आज के टाइम में। एक तो हम वर्कशॉप की आपस में एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को, ठीक है। वील नो कि वर्कशॉप के बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन आउटडेटेड होंगी क्योंकि वी हैव चेंज द प्लेटफॉर्म, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन विल बी सूटेबल एंड आई गेस मोस्ट ऑफ यू वुड हैव डन इट। फिर हम थोड़ी मैथ्स के ऊपर बात करेंगे, जब वर्कशॉप मैथ्स के ऊपर है तो मैथ्स क्या है, मैथ्स का स्वभाव क्या है। जैसे हम कहते हैं ना, हम बहुत अच्छे स्वभाव के लोग हैं, ये बहुत गुस्सा मिजाज वाला लोग है, ये उदास रहता है, तो हम मैथ्स के बारे में भी थोड़ा जानेंगे, भाई तुम्हारा स्वभाव क्या है। विल टॉक टू मैथ्स अबाउट दिस। विल नो कि भाई तुम मैथ्स, हमारी लाइफ में तुम 10वीं तक पक्के एक सब्जेक्ट बैठे हुए थे, चाहे हमें पसंद है नहीं पसंद है, हमसे पूछा नहीं जाता था मैथ्स करना है कि नहीं करना, तो क्यों क्यों पढ़ूं मैं तुम्हें, क्यों मैं पढ़ाऊं जाके तुम्हें, अगर बच्चों को नहीं पसंद है मैं क्यों नहीं छोड़ सकता मैथ्स, या क्यों नहीं छोड़ सकती मैथ्स। दैट वुड बी समथिंग we'll be talking about. Then we'll be talking about challenges जो आप लोग रिफ्लेक्ट करके मेरे को बताओगे, जब आप लोग स्कूल में थे क्या challenges आपने फेस किए मैथ्स में। we'll be talking about language and we'll be talking about how to move around these challenges, इनको हम कैसे एडजस्ट करते हुए चल सकते हैं। and in the end I'll be telling you what concrete points you can expect from this workshop. Yes, anything anyone wants to add, anything ये लगता है कि नहीं ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा, तो we'll save time on it, या कुछ लगता है कि मैम ये भी बता देना। I would really want if I don't hear silences. मेरे को एक इंटरैक्टिव क्लास पसंद है। आप लोग भी स्कूल में जाओगे और अगर बच्चे चुपचाप से मुंह बंद करके बैठ जाएंगे तो मजा नहीं आएगा ना क्लास में। Yes, so I would really want सुनाते रहो आवाज, ओके यस थम्स अप, इधर उधर कुछ ना कुछ, कीप डूइंग दैट ताकि लगे कि हम लोग कहीं बैठे हैं। शांति वाली क्लास नहीं पसंद आती है। स्कूल में शांत बैठते ही नहीं थे, मैम डांट डांट के बिठाती थी शांत, अब यहाँ मैम बोल रही है बोलो बोलो बोलो, तब बोलना नहीं है। सो लेट्स जस्ट रिमेन इन दैट पुराना वाला एटीट्यूड कि बोलना है। ओके ओके, सो हाय, आई वांट दिस इंट्रोडक्शन सिमिलर फ्रॉम योर साइड। हाय, आई एम गरिमा। मैथ्स मेरा स्ट्रेंथ नहीं है, पर मेरे को मैथ्स क्यूरियस करता है, मेरे को बहुत अमेजिंग सा लगता है, अरे वाह ऐसा हो गया, वाओ ऐसा हो गया, ऐसे वाली चीज करती है मैथ्स। एंड ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट जहाँ मेरे को नहीं लगता कि आई कैन टीच और आई कैन लर्न दैट। मेरा वो डब्बा गुल जैसे बोलते हैं ना, डब्बा गुल है भाई इस सब्जेक्ट में, इट इज दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट फॉर मी। सो आई वुड रियली वांट टू नो यू बेटर फ्रॉम दीज थिंग्स। अपना नाम, अपना कौन सा सब्जेक्ट आपको लगता है यार इस सब्जेक्ट में मेरा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, या ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, और दूसरा सब्जेक्ट जिसमें भाई ये सब्जेक्ट से तो भगवान बचाए, इधर तो जाके ना तेल चढ़ाना पड़ेगा या पूजा करना पड़ेगा, वैसे वाला सब्जेक्ट। So I would really want to see your messages in the chat box. In the favor of time, क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं, तो just put that in the chat box. I'll keep reading that. Until then, I'll take you to the workshop information. Does that sound cool? Thumbs up. Is it fine? Yes, ma'am. Great, great. I've also started receiving some messages. Okay. Keep messaging. I want to see chat box with all your names,
your subjects you're fond of, subjects जिसमें नहीं पसंद करना, हटा दोगे दुनिया अगर तुम्हारे हाथ में आया तो उस सब्जेक्ट को ही हटा दोगे दुनिया से. Let me know about those subjects. Yeah. Okay. Some important information. हमारा प्लेटफॉर्म गूगल क्लासरूम है. मोस्ट ऑफ यू हैव जॉइंड. आई एम रियली ग्लैड दैट यू पीपल हैव जॉइंड. ठीक है, इधर आपको सारी रीडिंग्स मिलेंगी, असाइनमेंट अपडेट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा. एंड दिस वुड रिमेन विद यू फॉर योर लाइफ टाइम. ठीक है, आई रियली वॉन्ट यू चिल्ड्रन टू गो टू गूगल क्लासरूम, उसे एक्सप्लोर करो. गूगल क्लासरूम के साथ ना थोड़ा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि अब ऑनलाइन टीचिंग है. यू शुड बी कंफर्टेबल विद दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. तो इनको एक्सप्लोर करना पड़ेगा हमें. सो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग गूगल क्लासरूम. सी उसमें क्या है, पोस्ट कैसे होता है, क्या नहीं होता है. पोस्ट करो, जो मन में आया, जो वर्कशॉप से रिलेटेड है, पोस्ट करो. हैव अ डिस्कशन ऑन इट. सी हाउ गूगल क्लासरूम कैन बी यूज्ड एज अ रिसोर्स फॉर टीचर. इसलिए वी विल बी हैविंग अ क्लासरूम ऑन इट. ठीक है, आई होप सबने ज्वाइन कर लिया है इसे. जिन्होंने नहीं किया है, मैं इस वर्कशॉप इस आज के सेशन के बाद आई विल बी शेयरिंग द लिंक अगेन ऑन द ग्रुप. ज्वाइन कर लेना. ठीक है, मीटिंग्स हमारी गूगल मीट पे नहीं, सिस्को पे होगी. ठीक है, इट विल बी रिकॉर्डिंग. इट इज रिकॉर्डिंग. इट इज रिकॉर्डेड नॉट फॉर एनी अदर पर्पस बट ओनली फॉर माय रिसर्च पर्पस, ताकि मैं उसके नोट्स बना पाऊँ, मैं अपने आप को और सुधार पाऊँ उसे देख के. ठीक है, द लिंक इज शेयर्ड ऑन द ग्रुप, so this is not the link. Duration is 1.5 hours and since we are having our classes from 3 to 4:30, जो lunch के बाद का टाइम है, अच्छी तगड़ी वाली नींद आने वाली है. I know. सब खाना खा के बैठे होंगे, सब उबासियां ले रहे होंगे, धीरे धीरे लैपटॉप साइड होता जाएगा और आप लेटते जाओगे, चादर आ जाएगी ऊपर और सो जाओगे. I know that. I've been into that stage, so I know. इसलिए I want all of you to sit with a cup of coffee or a tea that keeps you awake. और ऐसा लगता है ना कि नींद आ रही है, जाके फटाफट से पानी मार के आना आंखों में. सोना नहीं है हमें. ठीक है, डन. कोई सोएगा तो बता दो अभी से कि मैम मैं आज की क्लास में सोने वाला हूँ, प्लीज स्पेयर मी. ग्रेट. तो अब हम रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाते हैं. ये रजिस्ट्रेशन लिंक होगा. बेसिक आपका नाम, इंटर्नशिप और आपके बारे में थोड़ा जाना होगा. इधर किसी ने नहीं भरा है, आई विल बी शेयरिंग द लिंक्स अगेन. आप लोग भर देना. व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना. इधर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे. सारे जितनी भी इंफॉर्मेशन फ्लोट होगी ना सेशन में, ध्यान से पढ़ना. सब कुछ ध्यान से पढ़ना, देखना एक एक चीज क्या हो रहा है, नाम अच्छे से पढ़ना उनका. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल अ टीचर शुड नो. अगर आप लोग हवा फटाफट इग्नोर कर दोगे मैसेज या बहुत सारी चीजें, टीचर्स के पास एक साथ इतनी सारी इंफॉर्मेशन आती है एंड आपको ये बच्चों पे एक्ट करना है. बच्चे आलू प्याज तो है नहीं कि चलो एक बच्चा खो गया कुछ नहीं होता, एक बच्चे के साथ गलत हो गया कुछ नहीं होता. आपको हर बच्चे के साथ सही करना पड़ेगा और इसलिए आपको हर इंफॉर्मेशन सही पढ़नी पड़ेगी. सपोज किसी की फीस आई है 100 रुपए, किसी की फीस आई है 500 रुपए. अभी आप 100 रुपए वाले से कहो 500 रुपए निकाल, वो नहीं चलेगा. और वो कैसे हो सकता है, आपने इंफॉर्मेशन गलत पढ़ी होगी. सो यू नीड टू बी वेरी वेरी अटेंटिव व्हाइल रीडिंग द इंफॉर्मेशन. तो जितने मैसेजेस फ्लोट होंगे गूगल क्लासरूम पे, व्हाट्सएप पे, सब ध्यान से पढ़ना है. ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग सब ध्यान से. ये स्किल सीखेंगे हम लोग सारी इस वर्कशॉप में. ठीक है, एंड देन दिस इज द फॉर्म. मैंने अभी चैट बॉक्स में शेयर किया था, शेयर इट अगेन. दिस इज थॉट्स अबाउट इंक्लूजन. ये वाला फॉर्म भी भरना है. ये हमें थॉट्स डेवलप करने में कोशिश करेगा. ठीक है, जानेंगे हम इसके बारे में. तो ये फॉर्म भी भर देना आज तक. आई अगेन शेयर द फॉर्म. ठीक है, मैम ने आपको बता दिया अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है. आपको 3-4 तरीके के फॉर्म मिलेंगे. एक फॉर्म होगा थिंक रिफ्लेक्ट एंड शेयर. इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जिस पे सोचना होगा, आंसर देना होगा. आंसर कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं होगा. कोई आंसर गलत और सही नहीं है, हम सिर्फ समझ बनाने की कोशिश कर रहे हैं. तो गलतियां अलाउड है, परफेक्शन नहीं चाहिए. ठीक है, इम्परफेक्ट आंसर्स चलेंगे पर समझ बननी चाहिए, समझ दिखनी चाहिए. विकिपीडिया से कॉपी पेस्ट करोगे फॉर्म के अंदर, मेरे पास फॉर्म में रेड मार्क होके आ जाएगा कि ये कॉपी पेस्टेड आंसर है. प्लेगरिज्म होता है. प्लेगरिज्म इज नॉट अलाउड. आप किसी और के आइडियाज कॉपी पेस्ट करके अपना नाम नहीं दे सकते. सो आई डोंट एंटरटेन इट. ठीक है, अपनी सोच, अपनी समझ बनाने की कोशिश करेंगे वर्कशॉप में. गलत आंसर्स की मेरे को कोई परवाह नहीं है. सही और गलत मेरे लिए है ही नहीं कुछ. ठीक है, विल बी हैविंग फीडबैक फॉर्म जिसमें आप मेरे को फीडबैक देते रहोगे कि भाई मैम ये गलत हो रहा है या ये समझ नहीं आ रहा, थोड़ा धीरे चलो, फास्ट चलो, ये चीज भी करवा दो. ये सारी चीजें आप देते रहो. ठीक है, एंड ऑल योर फीडबैक्स, योर पार्टिसिपेशन फॉर्म्स, टास्क, असाइनमेंट, सब
कुछ भी उसमें से ग्रेडेड हो सकता है सब कुछ ग्रेड हो सकता है कुछ चीजें ग्रेडेड हो, बट यू विल लर्न, यू विल डेवलप। एक टीचर बनने आए हो, टीचर बनोगे धीरे धीरे इस वर्कशॉप, ठीक है। डेडलाइंस होंगी टास्क की, सारी डेडलाइंस Okay. आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। मैं बहुत सोच समझ के डेडलाइंस डालूंगी, ऐसा नहीं है कि भाई मैं एक दिन में बहुत हाइपोथेटिकल टास्क दे दूंगी, बट यू नीड टू फॉलो द डेडलाइंस। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैम मैं डेडलाइन नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, ये दिक्कत है, तो वो दिक्कत मेरे को बताओ, गूगल क्लासरूम में बता दो, पोस्ट कर दो, मेरे को मेल कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो कि मैम ये दिक्कत है, मैं इस दिन तक कर दूंगा, पर सारे टास्क करने पड़ेंगे। एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू कम्युनिकेट। जब बच्चा क्लास में से गायब हो जाए, एक दिन आया, उसके बाद 10 दिन गायब हो जाए, फिर 2 दिन आए, फिर गायब हो जाए, यू विल फील यू विल फील एंग्री ऑन इट कि ये बच्चा कहाँ गायब हो जाता है, बता के तो जा भाई, तू कहाँ जा रहा है, मैं सोचता रहता हूँ कहाँ गया कहाँ गया। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू कम्युनिकेट एंड यू नीड टू लर्न टू कम्युनिकेट, ठीक है। दैट इज एन इम्पोर्टेंट स्किल अगेन, तो वील डू दिस। यस Excuse me, ma'am. यस है ऑफ होल नंबर्स के ऊपर ही सारा डिस्कशन, होल नंबर्स। आपके क्वेश्चन का आंसर आज वर्कशॉप के लास्ट में आई गिव इट, ठीक है। विल कम टू दैट क्वेश्चन इन द लास्ट। पहले थोड़ा मैथ्स के बारे में जानते हैं, फिर बताते हैं वर्कशॉप में क्या होगा एग्जैक्टली। और किसी को कोई डाउट्स है अभी, या फिर हम आगे चले? नींद नहीं आएगी, ओके गुड। और किसी को कोई क्वेश्चंस है? शुड वी मूव अहेड? Great. There is silence, I think. Let's move ahead. Okay. फटाफट से बताओ। Blank. In the blank. क्या आएगा इधर? Is my voice breaking? Someone is on unmute. आप सब एक बार म्यूट करो अपने आप को, ठीक हो जाएगा शायद। Is it better now? आप समझ आ रहे, सुनाई दे रहे हैं ढंग से? आवाज ब्रेक हो रही है? No, Yes, ma'am, ma'am, now it's it's clear. Ma'am, it's clear now. ग्रेट। तो ये ब्लैंक बताओ क्या आएगा? सम ऑफ टू ऑड नंबर्स क्या होता है? इवन नंबर होता है। No, ma'am. कोई एग्जांपल दे सकते हो क्या होता है? मेरे को ऑड नंबर नहीं पता, इवन नंबर नहीं पता, सम नहीं पता, मेरे को एग्जांपल Odd देके number, समझाओ। मैम odd number होते हैं 1 3 5 7 9 एंड even number होते हैं 0 2 4 6 8 एंड मैम Ma- जिसके लास्ट में भी ये नंबर्स आते हैं वो भी इवन और odd ही होते हैं। Ma'am, एंड मैम odd plus odd is equal to even होता है, इसका एग्जांपल है 3 plus 3 is equal to 6। ओके, someone else was Ma'am, also trying to say. मैम ऑड नंबर्स जो होते हैं मैम, इवन नंबर्स जो होते हैं उनके पेयरिंग हो सकते हैं। एग्जांपल की जैसे हमारे पास 4 है, तो 4 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से। तो मैम इसी तरह जो जो नंबर्स जिन जिन के नंबर्स के पेयर बन सकते हैं विदाउट लेफ्टिंग एनीवन आउट, दोज आर इवन नंबर्स, और जिनके पेयर नहीं बन सकते हैं वो ऑड नंबर होते हैं। तो मैम sum of two odd numbers is always an even number. For example मैम अगर हम लोग ले लीजिए, हम ले लेते हैं 5 plus 7 लेते हैं, तो मैम 5 plus 7 लेने पे हमारे पास ओके, वेल बैक, ठीक है। ओके वैशाली, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। 12 के बाद मैंने कुछ नहीं सुन पाई। ठीक है, और कोई कुछ ऐड करना चाहता है इस इंफॉर्मेशन को, इस इंफॉर्मेशन में? कुछ भी नया ऐड करना है, कोई नया एग्जांपल लेना है? नो मैम। ओके ओके ग्रेट। अब मेरे पास ये एग्जांपल है, ये इंफॉर्मेशन है, आपने जितनी इंफॉर्मेशन दी मैंने बोर्ड पे लिख दी है। अब मेरे को बताओ जरा, ऐसा क्यों होता है? व्हाई इज इट ऑलवेज इवन? मैंने तो ऑड नंबर लिए थे, मैं इवन नंबर पे क्यों आ गई? मैम में आई, मैम में आई। यस
Yes. मैम ऑड नंबर में मैम क्या होता है कि हमारे पास मान लीजिए एक ऑड नंबर है, तो उस एक ऑड नंबर में हमारे पास एक रिमेनिंग पेयर रहेगा, एक ऐसा वो नंबर रहेगा जो अनपेयर्ड रहेगा। जैसे मान लीजिए हमने 3 लिया, तो 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 1 रहेगा। वैसे हम उसमें अगर +5 करते हैं, तो 5 को 2 से डिवाइड करने पे मैम 4 वो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। वो 5 को 2 से डिवाइड करने पे 2 आएगा आंसर, यानी 2 के ग्रुप्स बनेंगे और एक रिमेनिंग बचेगा। तो मैम जब हम ज्वाइन करेंगे तो 3 का रिमेनिंग नंबर और 5 का रिमेनिंग नंबर दोनों ऐड होकर के अपने आप पेयर बना लेगा। तो इस तरह हमारे पास जो रिजल्टिंग आएगा वो ऑड इवन नंबर आएगा, 2 ऑड की Perfect. प्लस है। परफेक्ट। तो मतलब आप वैशाली, आप ये कह रहे हो कि मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, 3 को मैं 2 + 1 करके लिख सकती हूँ, 4 को मैं 5 + 1 करके लिख सकती हूँ, एंड इसके अंदर ये 2 और ये 4 इवन नंबर्स है, और ये 1 और ये 1 साथ में मिलके 1 + 1 जो है ये 2 बन जाता है, जो अपने आप फिर एक इवन नंबर हो जाता है। सो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, बट वी आर जस्ट एडिंग 3 इवन नंबर्स टुगेदर। डज दिस मेक सेंस? क्या मैं सही कर रही हूँ, मैंने कुछ गड़बड़ करी, क्या हुआ, कुछ लॉजिकल लगा, रीजनिंग लगा इसमें कुछ? ऋषिता इज सेइंग यस, एनीवन एल्स? सिर्फ यस ऋषिता को मैम, लग रहा है ये लॉजिकल है? मैम ये ठीक किया आपने, बिकॉज जब भी ऑड मैम नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स में हमें पेयर्स बनाने होते हैं, तो लास्ट में रिमाइंडर बच ही जाता है। तो उस रिमाइंडर की जो बच जाता है उसको भी पेयर बनाने के लिए जो कमी को पूरा करता है, तो वो दूसरा जो ऑड नंबर होता है वो उसकी कमी को पूरा करके उसको भी इवन नंबर बना देता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो इंटरेस्टिंगली मैंने अभी अभी रियलाइज करा कि ये जो है ये एक थ्योरम की तरह आती है हमारे पास। ठीक है, मैं इसके आगे ना एक चीज ऐड करती हूँ, सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज ऑलवेज। लिख सकती हूँ ना ये ऑलवेज? यस मैम, यस ऑलवेज। मैम यस मैम ऑलवेज लिख सकते हैं। ठीक है। और मैंने अभी रियलाइज करा ये वाला स्टेटमेंट मेरे को जब मैं स्कूल में थी ये 7th 8th में पढ़ाया जाता था, और कभी इसका लॉजिक नहीं बताया जाता था, जबकि लॉजिक हमें ऑलरेडी, लॉजिक का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी 1st 2nd ग्रेड में पढ़ा चुके थे, है ना? यस मैम, इवन हमने भी रियलाइज किया था मैम, क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन ऐसे आते थे ट्रू फॉल्स वाले, उसमें स्टेटमेंट्स होती थी, हमें ट्रू और फॉल्स बताने होते थे, तो उनमें हम कई बार तुक्के लगाते थे कि हमें लॉजिक पता ही नहीं था उन चीजों का ऑन आपको दैट मैं टाइम। नहीं पता था? यस यस। अच्छा, मैंने पता है एक, ये ऑब्जर्वेशन मेरी नहीं है, ये मेरे को एक बच्चे ने बताया था, 3rd क्लास का बच्चा था, जिसने मेरे को इसी क्वेश्चन के आंसर को ऐसे समझाया था। कहता देखो, उस बच्चे की मैं आपको बताती हूँ, मेरे को बहुत अच्छे से ना मेरे दिमाग में छप गया उसका समझाना, बहुत मजेदार तरीके से समझाया था उसने। कहा देखो मैं ऑड नंबर पे खड़ा हूँ, आप कह रहे हो मैं 3 पे खड़ा हूँ, ठीक है, अभी मेरे को इसमें 3 जोड़ना है, तो मैं 3 बार कूदूंगा, 3 बार कूदना पड़ेगा। यस मैम Someone is saying anything? Someone has any question? नो मैम। ठीक है, तो अभी मैं 3 पे खड़ी हूँ और मेरे को 3 बार कूदना है। ये मेरी एक कूद हुई, ये दूसरी और ये तीसरी। ठीक है, कूदी तो मैं कौन से नंबर पे पहुंचूंगी? 6। नहीं, एक कूद लगाई है मैंने, ओनली 1। 3 + 1 4 देन 4, 5 एंड देन दैट इज एन 6। इवन नंबर, है ना? यस फिर +1 किया, मैम 5 ऑड नंबर, ऑड नंबर, फिर +1 किया, देन 6 इवन नंबर। इवन नंबर। इवन नंबर। तो उसने कहा कि हमारा जो काउंटिंग है उसमें आप लोगों ने अरेंजमेंट ही नंबर्स की ऐसे करी है, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, कि अगर मैं ऑड नंबर पे खड़े होके ऑड जंप लगाऊंगा तो मैं हमेशा ही इवन नंबर पे पहुंचूंगा। और उसने अपने एक एग्जांपल, जो उसने 3 + 3 का एग्जांपल लिया था, उसने छोटे छोटे और एग्जांपल निकाल दिए। कहता देखो 3 + 1 ऑड नंबर होता है ना, तो ये 4 है, 4 + 1 लिया मैंने, 4 तो इवन था, अभी 4 + 1 ऑड दे देते हैं, तो ये वाला एग्जांपल मैं नहीं काउंट करूंगा। 5 + 1 लिया तो वो 6 हुआ, ये भी ऑड था ये भी ऑड था। उसने मेरे को ऐसे करके समझाया ये क्वेश्चन कि देखो मैंने ये समझ लगाई। Wasn't it interesting? यस मैम। यस मैम। And this was a grade 3 child telling me this.
तीसरी क्लास में था ये बच्चा। मैम गवर्नमेंट स्कूल और केवी। आई डोंट टैग चिल्ड्रन विद स्कूल्स दे बिलोंग टू। हर बच्चा उसी कैपेसिटी के साथ जाता है, और हर स्कूल में टीचर का होता है, जितना टीचर फैसिलिटेट करेगा उतना करेगा। ऐसा कुछ है क्या कि आप गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे तब आप एक अलग टीचर बनोगे और केवी स्कूल में जाओगे तब एक अलग टीचर? नो मैम, नो नो मैम, ऐसा कुछ नहीं है, What बट all मैम doesn't हमने ये matter. रियलाइज किया है क्योंकि हम खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं। मिलता है बच्चों को उस टाइम। ओके राजा, आई गिव यू अ थिंकिंग क्वेश्चन थोड़ी देर बाद में, ठीक है? उस पर हम सोचेंगे थोड़ा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं चाहूंगी कि आप कुछ बच्चों ओके को मैम। ढूंढो। आई गिव यू अ होमवर्क ऑन दिस, ठीक है? अभी नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अभी मैंने यहाँ पे तो चेंजेस कर दिए थे, ये इवन नंबर है, ये ऑलवेज है। अभी इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है? कुछ फर्क है? पहले तो ये बता दो। इन दोनों स्टेटमेंट्स में कुछ फर्क है? इसका आंसर क्या है पहले ये बता दो फिर, कोई भी जो साइंस बैकग्राउंड का हो। यस मैम, ट्रू है, ट्रू है? ट्रू। यस मैम, यस ट्रू। मैम, 100 अच्छा, डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है। अभी मेरे को जितना याद है, मैं जब केमिस्ट्री 11th क्लास में थी, लैब में जाके खड़े होके हम देखते थे, कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स आ जाते थे, टैप वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, यस मैम, यस मैम, सॉल्टी वाटर, और इन सब के टाइप के हिसाब से ना, जैसे जैसे पानी का टाइप बदलता रहता था उसका यस मैम, क्वालिटी बदलता रहता था। यस मैम। क्या नंबर्स के साथ ऐसा कुछ होता है? क्या इस स्टेटमेंट में ऐसा हुआ? मैं नंबर बदलती रहूंगी तो क्या ये स्टेटमेंट, इसका ये आंसर भी बदलता रहेगा? नो मैम। नो। व्हाई इज इट सो? थिंक अबाउट इट, व्हाई इज इट मैम सो? उसके साथ एक स्टेटमेंट Because जोड़ number, देंगे नंबर के साथ, जो स्टेटमेंट मतलब कि उसको रिलेट करती है। बट उधर क्यों चेंज होता रहता है, इधर क्यों नहीं चेंज होता? इसमें से मैथ्स का क्वेश्चन कौन सा है पहले ये बताना मेरे को। मैथ्स, दोनों ही मैथ्स के मैम, क्वेश्चन है? मैम ऊपर वाला मैथ्स का है, नीचे वाला ऊपर साइंस वाला का है। मैथ्स का है, नीचे वाला साइंस का है। हाँ, तो डिफरेंस क्या हुआ? मैथ्स और साइंस में क्यों डिफरेंस आ गया? क्या है ऐसा जो मैथ्स और साइंस हो गए ये सब्जेक्ट्स? इम्प्योरिटी, बेसिकली नंबर्स प्योर है, लेकिन जब वाटर का केस आपने डिफरेंट वाटर ले लिया तो वहाँ पे इम्प्योरिटीज ऐड होने के बाद उसमें जो आंसर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। You use the word purity, I use the word abstract. हाँ, यस मैम। abstract का कोई मेरे को मतलब समझा सकता है? मैम एब्स्ट्रैक्ट लाइक विच इज इंटेंजिबल, वी ओनली वी, Intangible. हाँ, उसे हम महसूस करते हैं बट उसे हम मतलब टच नहीं कर सकते, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब ये सारी हमारी दिमाग की उपज है। यस मैम, ये मैम, हमारे। एग्जिस्टिंग एज एन आइडिया, जिसमें वो कोई फिजिकल थिंग नहीं हो, हम लोग हमारे हमारे विचार से हो, हमारे थॉट से, हमारे आइडिया से वो डेवलप हुआ हो, एग्जिस्ट कर रहा हो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो क्या ये मैथ्स का एक नेचर नहीं है कि वो abstract है अपने नेचर में? If I have to ask, after all this discussion that we have done, what is the nature of mathematics? सोनम, मेरी आवाज अभी भी ब्रेक हो रही है आपके लिए? यस मैम। ओके, अभी बेटर हुआ थोड़ा सा? मैम अभी जो एक दो लाइन थी वो अच्छे से सुनाई दे रही थी वैसे। ठीक है, परफेक्ट। नेचर ऑफ मैथ्स क्या होता है फिर? क्या समझ आया हमें मैथ्स के बारे में? उसका क्या स्वभाव है? मैम यूनिवर्सल? मैथ जो है लॉजिकल होता है, यूनिवर्सल होता है। और क्या होता है? मैम सिंबॉलिक होता है, इसमें सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है।
own language. Okay. मैथमेटिक्स ब्यूटीफुल भी होता है। Beautiful भी होता है। एस्थेटिक्स मैम, एस्थेटिक्स। I'll come to this. ये पाक कर रहे हैं जिसने भी मेरे को बताया। I'm sorry I missed who told me this. अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आऊंगी ना, तब मेरे को ये आप बताना कैसे, ठीक है? सिस्टमेटिक। क्या ये वर्ड जोड़ दूं? Can I add this word? सिस्टमैटिक होता है मैथ्स। रीजनिंग, यस मैम, रीजनिंग आल्सो। Logical reasoning. क्या ये भी जोड़ सकती हूँ? जनरलाइजेशन का मतलब कोई समझा सकता है? यस मैम, जनरलाइजेशन लाइक कोई भी यानी कि रूल है या कोई सिद्धांत है जिसको हमने एक्सप्लोर किया, जिसमें रिसर्च की, लास्ट में उसको जनरलाइज कर दिया, मतलब कि सामान्यीकृत कर दिया गया उसको। उसका एक लाइक हम कह सकते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में, मतलब कि एक रूल बना देना कि इसी के अकॉर्डिंग सारी प्रोसीजर होती है, लाइक जनरलाइजेशन। ग्रेट। मतलब हमने क्या करा, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, ये हर इन सिचुएशन में ये सारी चीजें ट्रू हैं, तो ठीक है, ये चीज हमेशा के लिए ऐसे ही रही। एक स्टेटमेंट दे दी हमने, थ्योरम ma'am. दे दी। Exactly, ma'am. थ्योरम ma'am. दे दी। मैम जैसे लाइक फर्स्ट आपने जिस स्टेटमेंट से ही स्टार्ट किया था, दैट सम ऑफ टू odd number is always a even number is also the generalized statement in mathematics. यस, एंड वी जनरलाइज्ड इट। हमने उसे गिवन नहीं ले लिया, हमने अपने इस पूरे प्रोसेस में जनरलाइज किया, उसकी रीजनिंग लॉजिकली रीजन किया और एक जनरलाइजेशन निकाली, है ना? Yes, ma'am. यस मैम। अभी इस जनरलाइजेशन, जब हमें जनरलाइजेशन निकालनी थी, तब हमने क्या क्या यूज किया, थोड़ा अपनी किस किस चीज की समझ यूज करी? Ma'am, numbers, basically even and odd numbers से we have started from the examples. Then addition process के through go through होके जो product हमारे odd और even number in condition से prove हुए. So basically we use both process and product approaches to find our process, and basically generalization of that statement we have done. तो आपने बेसिकली मोटा मोटा इन दोनों चीजों का इस्तेमाल किया, नंबर्स और इवन नंबर्स क्या होते हैं और एक एडिशन के प्रोसेस को, है ना? Yes, ma'am. दिस इज समथिंग विच इज डिफाइंड। इसकी डेफिनेशन हमें दी गई थी, हमें बताया गया था, यस मैम। है ना? मैं Yes, ma'am. किसी ऑड नंबर को ऑड नंबर कह रही हूँ, 2 को इवन नंबर बोल रही हूँ, 3 को ऑड नंबर बोल रही हूँ, तो दिस इज समथिंग डिफाइंड। समवन ऑलरेडी टोल्ड मी दैट सी the numbers which cannot be paired evenly are called odd numbers, and the numbers which can be paired are even numbers. और मैम we can say we use deductive method of the teaching. Was it a deductive method? Yes ma'am, because हमें पहले स्टेटमेंट दे दिया गया, उसके बाद एग्जांपल्स के थ्रू से समझाया गया। हाँ, तो एक स्टेटमेंट दे दिया गया हमें, एक एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट, एक आर्बिट्रेरी स्टेटमेंट दे दिया गया, है ना? मैं 2 को कुछ Yes, और भी ma'am. कह सकती थी। अगर सपोज करो जिसने ऑड इवन टर्म्स दिए होंगे, उसने कहा मैं ऑड इवन नहीं बुलाता, मैं इसे राम शाम बोलता हूँ, तो हो सकता है आज के टाइम पे हम बोल रहे होते जो नंबर्स पेयर हो जाते हैं उन्हें राम बोलते हैं, और जो नंबर्स पेयर नहीं होते उन्हें श्याम बोलते हैं। ऐसा हो सकता था? Yes मैम, बिल्कुल हो सकता था। है ना? तो दिस वाज समथिंग गिवन टू अस, समथिंग ऑलरेडी गिवन, आर्बिट्रेरी था ये। इसके पीछे की रीजनिंग नहीं है कि इसे ऑड नंबर क्यों बोलेंगे, हम उसे समझा रहे हैं कि ऑड नंबर की प्रॉपर्टी ये होती है, उसका पेयर ना होना इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑड नंबर, है ना? तो जब आप ma'am. बच्चे को बताओगे तो आपको खुद से बताना पड़ेगा कि देखो 2, 3 ऐसे ये ऑड नंबर्स होते हैं, या इवन नंबर का डेफिनेशन ये होता है और ऑड नंबर का डेफिनेशन ये होता है। यस, सो दिस इज आर्बिट्रेरी। There are few things in maths which are arbitrary, which you as a teacher has to tell the child, and then some things are called necessary, जिस पे आप काम कर सकते हो, जिसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो।
मैं 3 और 3 को साथ में रखूं अगर, तो वो 6 बनेगा। वो तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, देखो 3 और 3, बच्चे ने क्या करा, उसे एडिशन नहीं आता। जब हम कह रहे हैं एडिशन का प्रोसेस, बच्चे को 3 नहीं आता, उसने कहा अच्छा 3, ठीक है, ये 3 बॉल्स हो गई, फिर से 3, ठीक है, मैंने दूसरे किसी और के 3 कंचे ले लिए। अभी ये कितने हुए तुम ये पूछ रहे हो, तो 1 2 3 4 5 6, ये लो, ये 6 हो गए। उसने 6 भी ऐसे ही लिख दिया, 6 बनाया मैंने नहीं, उसने ये कर दिया। क्या ये वाली अंडरस्टैंडिंग गलत है बच्चे की? क्या ये आंसर गलत होगा? नो मैम, No, इट्स ma'am. टोटली करेक्ट। तो मैम Yes. सही है। This is something that child has understood, child has manipulated, and child has constructed. है ना? यस यस मैम। मैम। So this is something called necessary concept, which is getting constructed in mind. जब मैं इसे कहूंगी कि देखो ये 3 है, तो वो ऐसे लिखेगा जब इसे, तो वो एक नॉलेज अपनी यूज कर रहा होगा, एक आर्बिट्री नॉलेज की। इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसको भी मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो आर्बिट्री और नेसेसरी में डिफरेंस समझ आया? यस मैम। दिस इज अ यस वेरी मैम समझ इंपॉर्टेंट, में आ गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो जब आप क्लास में जाओगे ना, जब हम आज के टाइम पे बोलते हैं कि हमें मैथ्स एक्टिविटी से करवानी है, तो हमें ये जरूरी है समझना कि कौन सी चीजें हम एक्टिविटी से बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है और कौन सी चीजें मेरे को एज अ टीचर जाके बच्चे को बतानी पड़ेंगी। ठीक है? यस मैम। अभी सबके लिए ये एक थिंकिंग टास्क है, इन बस क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए। ज्योमेट्री में आप लोग 6 to 10 तक की ज्योमेट्री में आप एक चैप्टर ऐसा पढ़ते थे जो ज्योमेट्री का आर्बिट्री बेसिस, एक पूरा ढांचा तैयार करता था आपके लिए, और उसके ऊपर आपने पूरी ज्योमेट्री अपनी बेस कर रखी है। तो सोचना वो कौन सा चैप्टर था जो आर्बिट्री था ज्योमेट्री में। ठीक है? और फिर आपको ज्योमेट्री कैसे पढ़ाई गई आर्बिट्री और नेसेसरी कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए, वो सोचना। मैं ज्योमेट्री का एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हम नंबर्स की तो बात करेंगे, तो ज्योमेट्री के बारे में भी सोचना शुरू करना। ठीक है? ओके मैम। यस। अभी मेरे को बता दो, हमने मैथ्स को जान लिया, स्वभाव जान लिया, जरूरी है ये मैथ्स को हर कोई जाने? इज इट इम्पोर्टेंट एवरीवन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड विद मैथ्स? यस यस मैम, मैम। व्हाई इट्स यस इम्पोर्टेंट। मैम इम्पोर्टेंट है व्हाई व्हाई व्हाई? मैम, क्योंकि डे टू डे मैथ्स लाइफ जो में है मैम। डे टू डे लाइफ से हमारे इंटरकनेक्टेड है मैथ्स। बस डे टू डे लाइफ में। मैम बट अभी अगर जब हम आम आदमी की बात करते हैं तो डे टू डे लाइफ में ही होगा। कोई भी जो है हम कह सकते हैं कि बिना मैथ्स के नहीं रह सकता। पूरे वर्ल्ड में ही बिना मैथ्स के कोई रह ही नहीं सकता, आम आदमी हो चाहे कोई भी, बट सभी को मैथ्स चाहिए ही चाहिए होती है। ये बेसिक नीड है। तो राजा, जब मैं छोटी थी, लाइक 6th 7th क्लास में थी ना, मेरे को मैथ्स पसंद नहीं था, और 9th तक आते आते सब्जेक्ट्स लेने होते हैं जब 11th में, तो मैं सोच रही थी, मैं अपनी मैम से जाके कह रही थी कि मैम मेरे को मैथ्स पसंद नहीं है, मैथ्स नहीं लेना मेरे को। तो मैम ने कहा कि और घर वाले प्रेशर बना रहे थे कि नहीं मैथ्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैम ने भी यही कहा था डे टू डे लाइफ में तुम्हारे काम आएगा मैथ्स। तो मैंने कहा था कि मेरे को चाहिए ही नहीं, मैं डे टू डे लाइफ किसी और से एक्टिविटीज करवा लूंगी, जहां जहां डे टू डे लाइफ में मैथ्स चाहिए होगा ना, मैं किसी और की मदद ले लूंगी, मेरे को दिक्कत नहीं है, पर मेरे को मैथ्स नहीं करना। चलेगा वो चीज? नहीं मैम, वो चीज एक्चुअली नहीं चलेगा। वो पता है, यानी कि जो आपके माइंड में उस टाइम पर फोबिया क्रिएट हुआ था, हम उन जो कॉजेज थे उनको ही रिमूव करना चाहिए। लाइक सबसे पहला कॉज तो होता है मतलब कि बच्चों के अंदर फोबिया क्रिएट करना, जो कि पेरेंट्स करते हैं, उसके टीचर्स करते हैं, उसका पीयर ग्रुप करता है। तो हमें बच्चों को मतलब कि मैथ्स से डरने ही नहीं देना। उनको पहले इतना क्यूरियस बनाओ, इतना इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाओ ताकि बच्चों के अंदर फोबिया क्रिएट ही ना हो। ओके ओके। और किसी के कोई कमेंट्स इस पे? आई एम गेटिंग सम गुड responses in the chat box also. I really would love to hear these children, Nishita, Anjali, Ankita, Kunal. अपनी आवाज भी सुना सकता है। I am pretty sure your voices would be very pleasant to hear. मैम Yes.
Yes, Sonam. मैम बेसिक मैथ्स हमारे डेली लाइफ में इम्पोर्टेंट है। अगर सभी लोग मैथ्स ले लेंगे, मान लो सब्जेक्ट चुनने के लिए, तो साइंस आर्ट्स ये कौन लेगा? ओके, मेरे को समझ नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हो एग्जैक्टली। मैम जैसे आपने कहा कि आपको सब्जेक्ट चुनने थे तो आप मैथ्स से डरते थे, जैसे 11 12th में, 10th में या नहीं? मैम डेली लाइफ के लिए तो मतलब बेसिक मैथ्स जरूरी है। बेसिक मैथ्स जरूरी है, ठीक है। मैं उसी के आगे बढ़ना चाह रही हूँ। क्या मैथ्स सिर्फ बेसिक लाइफ तक लिमिटेड रहता है? आपके ही कुछ फ्रेंड्स मेरे को बता रहे हैं कि वो क्यूरियोसिटी इंक्रीज करता है, लॉजिकल थिंकिंग में हेल्प करता है। तो क्या वो सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग तब आएगी जब आलू प्याज लेने जाओगे या जब डिस्काउंट लेना होगा किसी प्रोडक्ट पे, या कहीं और भी वो जो लॉजिकल थिंकिंग, ये क्यूरियोसिटी काम आ सकती है कहीं और भी आपकी लाइफ में? मैम मैं आए यस। ओके मैम, मैथ्स जो है हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है हमारे करिकुलम में जो कि बाकी कोई भी सब्जेक्ट की जो है इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। बस यानी कि इसकी वैल्यू ओनली इतनी ही नहीं है कि ये डे टू डे लाइफ में काम आता है। कुछ गणित के सिद्धांत तो ऐसे हैं जिनका डेली लाइफ से कोई मतलब ही नहीं है, बट वो फिर भी काफी हाई लेवल पर है, उन पर स्टडीज की जाती हैं। इसका कारण ये है कि मैथ्स ओनली जो है हमारी डेली लाइफ में काम ना करके इससे है ना एक हमारी जो मेंटल एबिलिटी डेवलप होती है जो कि है रीजनिंग, जो कि हमारा कोई और करिकुलम सब्जेक्ट जो ऐसा है नहीं है जो कर सके इसे, बट मैथ्स जो है बच्चे की रीजनिंग को हांस करता है, इसलिए ये जरूरी है। ठीक है राजा, आपकी बात में आपने बोला कुछ चीजें जो डेली लाइफ में काम नहीं आती मैथ्स में। ऐसे कौन से टॉपिक्स है, आप क्या नाम दे सकते हो? आई ऑलरेडी हैव एन आंसर ऑफ इट। और भी क्या होते हैं? ट्रिगो हो गया, और मैम लाइक कई मैम सारे हैं जो हमने 10th में पढ़े थे, जैसे आर्किमिडीज के बारे में भी हमने पढ़ा था, और भी, बट अभी एट द मोमेंट पे मेरे को याद नहीं आ रहे नाम, बट कई मैम हैं लीनियर इक्वेशंस हो गई। एलपी लीनियर प्रोग्रामिंग बोल देते हैं, हायर टर्म में आ जाता है। आर्किमीड्स प्रिंसिपल एक बार सोचना कहाँ पढ़ा था। अल्फा बीटा, अल्फा बीटा तो हमने वो ले लिए थे, अलजेब्रा हो गया। अल्फा बीटा ये सब तो अलजेब्रा के टर्म्स हो गए। Okay, Vishali, I would really want to hear from you about the point you're talking about, aesthetic, moral, social, cultural value. Uh, okay, हाँ। let me complete this point. उसके बाद I'll come to you, Vishali. ठीक है? अभी जब हम ट्रिगो की बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले आया था, बेकार सबसे। आई गेस ट्रिग्नोमेट्री में तुम सबको तंग किया था ना? नो मैम ट्रिग्नोमेट्री में जो प्रूविंग करते हैं ना, LHS इज इक्वल टू RHS में, बस वही वीक पॉइंट था जो जिसने फोबिया क्रिएट कर दिया था कि मैथ्स नहीं लेनी है। बाकी ट्रिगो में जैसे हाइट्स फाइंड करनी थी और इक्वेशंस का था cos थीटा वाला वैल्यू, वो सब तो इजी था। ओके ठीक है। मैम अच्छा हमारे साथ तो कुछ ऐसा हुआ था कि हमें जो मैथ्स वाले हमारे टीचर्स थे वो मतलब कि जो कॉन्सेप्ट था उसको क्लियर नहीं करते थे, बस हमें फॉर्मूला बता देते थे, तो हम उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन कर जाते थे। अब हमें पता ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री या डेली में क्या यूज है डेली लाइफ में, बट हमने बस वो जो तो फॉर्मूला समझा और प्रोसीजर समझा और देन आंसर कर दे दिया। तो अभी मैं बताती हूँ ट्रिग्नोमेट्री कहाँ एक कंट्री ने यूज करी है, और वो कंट्री कहाँ खड़ी है इस वक्त। जापान के बारे में किसी ने सुना है? यस मैम। यस मैम। जापान कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? मैम एशिया। मैम एशिया। एशिया की कौन सी कंट्री है जो डेवलप्ड कंट्रीज में काउंट होती है? मैम जापान। मैम जापान, Why? चाइना। चाइना। China is not a developed country. China comes under developing countries. इट्स डेवलपिंग कंट्री। Yes. Russia is in China, Anjali. Oh, Russia is in Asia, sorry. Russia is a different continent. हम कॉन्टिनेंट्स पे बात कर रहे हैं। देखो इधर मेरे को कंफ्यूज मत करना, मैंने बताया था मैम ज्योग्राफी में रशिया डब्बा जो गुंडा है है। मैम रशिया में जो हमारा थोड़ा सा पार्ट जो है वो यूरोप में आता है, बाकी पूरा रशिया जो है वो मैक्सिमम पार्ट रशिया का एशिया में आता है। वी कैन से यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया। हाँ यस Okay, मैम वी कैन से ठीक है। हम एशिया पे रहेंगे, जो हमारी ये इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जापान, ये सारे इन पे फिक्स रहते हैं। रशिया थोड़ा ऊपर चला जाता है, ठीक है, टच हो रहा है, it is touching, but I am not sure if it is part of it. So coming back to our point, the only developed country in Asia till now is Japan. Can anyone tell me why?
मैम बिकॉज ऑफ इट्स एडवांस टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी वहां पे एडवांस? मैम लाइक हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में भी ज्यादातर जो कंपनियां हैं मारुति सुजुकी या पैनासोनिक वगैरह वगैरह जो भी ज्यादातर जापान की ही होती हैं। मैम बिकॉज इट्स लिटरेसी रेट बहुत हाई है मैम। लिटरेसी रेट, ओके। जापान में पता है हर दूसरे तीसरे मिनट एक अर्थक्वेक आता है। यस मैम इसमें बिल्कुल earthquake और सुनामी। और मैम वहाँ की पंचुअलिटी सबसे ज्यादा है, वहाँ की पंचुअलिटी लोगों में बहुत ज्यादा है। वहाँ इवन मैम ये भी कहा जाता है कि अगर कोई ट्रेन 5 सेकंड्स भी लेट हो जाती है तो ट्रेन का ड्राइवर जो है बकायदा उतरकर माफी मांगता है। मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि जापान में हर दूसरे तीसरे मिनट अर्थक्वेक आता है, एंड आई वाज अमेज्ड कि भाई जब हर दूसरे तीसरे मिनट अर्थक्वेक आ रहा है, उनकी बिल्डिंग्स टिकी कैसे हो रही है? हमारे में तो एक थोड़ा भयंकर वाला अर्थक्वेक आ जाए टूट जाती हैं। हाउ आर देयर बिल्डिंग्स सो स्टेबल? क्या यू रीड कि जापान में अर्थक्वेक आया, इतनी डिस्ट्रक्शन हुई, इतना ये हुआ, इतना वो हुआ? They have basically No, ma'am. invented in human resources. This Have is the invented most human important resources. point for them. ओके। मैंने जब पढ़ा था, मैंने जितना पढ़ा था, सपोज करो ये दीवार है, बॉल बियरिंग्स पता है क्या होती हैं? यस मैम। तो उन्होंने अपने आर्किटेक्चर को इस तरीके से बनाया है दैट देयर वॉल्स हैव बॉल्स इनसाइड इट। तो जब अर्थक्वेक आता है, बिल्डिंग हिलती है, तो ये जो बॉल है ना, ये हिलती है इधर। तो आपकी दीवारों की ब्रिक्स जो है, हमारे में अगर हम देखें दीवार एक पत्थर ईंट से बनी है, तो ईंट है ये। जब अर्थक्वेक आ रही है तो ईंट हिल रही है, मतलब आपकी जो पूरी दीवार जिस फाउंडेशन पे खड़ी हुई है वो हिल रही है। और इन लोगों ने क्या करा, सर्कल की प्रॉपर्टीज यूज करी कि उसका कोई एज नहीं है, तो आपके एज से एज टकराएंगे नहीं, टूटेंगी नहीं एजेस, दीवारों के अंदर क्रैक नहीं आएंगे। उन्होंने बॉल यूज करी, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट यूज किया और उस पर मूव किया। प्लस फिजिक्स में हम पढ़ते थे, जब एक बॉल टकराएगी इस सरफेस से, सिर्फ इतना पार्ट टकराएगा बॉल का और इतना पार्ट टकराएगा, है ना? यस मैम। सरफेस एरिया कम होगा बॉल का जो बाहर कॉर्नर से टकराएगा व्हेन कंपेयर टू दिस ब्रिक। यस मैम। सरफेस एरिया, प्रेशर, फोर्स, इन सब के रिलेशन साइंस में पढ़े थे। यस मैम। That is how they reduce the pressure. That is how they reduce the force acting inside. और इसलिए उनकी बिल्डिंग्स इतनी स्टेबली खड़ी रहती है। आ जाओ भाई अर्थक्वेक, अच्छा अर्थक्वेक अरे कुछ नहीं होता, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ और हैंडल कर रहे हैं अर्थक्वेक को, है ना? जैसे हम खाना खा लेते हैं, हमारे पेट में डाइजेशन सिस्टम अपना काम करता रहता है, हमें कोई परवाह नहीं है कि खाना अंदर गया, क्या हो रहा है खाने के साथ। कोई सोचता है कि भाई मैंने आज सुबह आलू की सब्जी खाई थी, आलू की सब्जी कैसे टूट रही है, ग्लूकोज बन भी रहा है कि नहीं, सोचते हो इस बारे में? नो मैम। नो है मैम। ना? उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स को ऐसे बना लिया है, उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स को कुछ ऐसे कैरेक्टर्स दे दिए हैं कि वो उनकी बिल्डिंग जो है वो अर्थक्वेक से अपने आप बात करती रहेगी, एंड दे डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। And that is one of the reason. It is not only the reason, of course, आपने बाकी reasons भी बताए हैं. That is one of the reasons Japan also counts into a developed country. And उन्होंने क्या use करा? Maths use करा, Trigo use किया. Trigonometry is the basis of developing architecture. वो टावर वाले क्वेश्चंस याद है? टावर है, उसकी इतनी शैडो होगी, यस मैम। यस Yeah. मैम। यस मैम। हाइट फाइंड करना। सुपर 30 में भी हमने देखा था, लास्ट में वो अपने ट्रिगो यूज करते हैं टू हिट द कार्स एंड ऑल, है ना? तो कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि मैथ्स आपकी सोसाइटी की डेवलपमेंट में काम आता है, यस मैम। राइट? सो सिर्फ डे टू डे लाइफ में नहीं, सिर्फ साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने में नहीं, इट ऑल्सो डेवलप्स योर सोसाइटी, राइट? यस मैम। यस मैम। राइट। National development, as Kunal is saying, national development, global development, linear programming. किसी ने बोला था कि हम लोग linear equations की बात करते हैं. I give you a question. Check करना linear programming हमारी
कैपिटलिज्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. I want you people to check how. ठीक है. Now coming back to वैशाली. वैशाली ने हमें बताया था कि एस्थेटिक सेंस, moral सेंस, ये सब भी डेवलप करता है मैथ्स. हाँ, वैशाली, can you enlighten us on it? Sure, ma'am. Ma'am, basically, when I have said about aesthetic values or beautiful things, the maths have, we learn about here symmetry and tessellations. That are the signs of beauty also, the patterns. They make the things beautiful. Basically, I can give example related to that in painting. In painting, many patterns are followed to make it beautiful. It is done in various arts also. Then our nature, galaxies, shapes, all the things are the resemblance of beauty, and we basically study them in mathematics. In beginning also, and at higher level till we go in depth, they are the part of mathematics. Then physics and other subjects are also connected there. When we ask about their social values, our timetable that we fix from early to night, the clock which we will start, like our morning schedule, evening schedule, our late night schedule, all we are studying the clock timings. We all learn from mathematics. Then I will focus on the moral values. Then the moral values like qualities we are studying, we have to follow, like honesty, loyalty, self-confidence. They became one of our ability when we start solving mathematics, when we gain our confidence, when we solve some questions, when we get right answers, or when we are some tracked upon, we again start. So maths have all these properties. Very well explained. Very well explained, Vishali. Thank you very much. Vishali की बात पे किसी को कोई comment है, कुछ है? Vishali, you have anything to complete? I'm sorry, I'm interrupting you if. I have cultural value also. That Yes, maths has cultural cultural values. because in mathematics we study when we say what is the reason of mathematics with culture or civilization, on civilization we always go to the subjects of social science or social studies, but mathematics is also a part, and it's only generally we can understand from the shape phenomena only, that the shapes we are studying. Like you have given the example of Japan and architecture, I will also add their way of care in the architecture, the thatched roof they use basically. It also helps in resistance in the earthquakes. And the shape and this type we connect directly with Japan when we see this type of roof. Yes, there was a part of this civilization or this country we are helped to study. Or basically when we study about circles and other, we came to Madhubani paintings. We can attach to the arts and where it come from. And on other things, I remarked a line from the famous mathematician Hobben that it is a mirror of civilization. He had called mathematics as a mirror of civilization. That's all, ma'am. Thank you. I really liked coming this line here. Mathematics is mirror of civilization. Great example, हमारा Vedic India. Think about the maths we had. Okay, I'll not go into civilization. That is a big topic, and that is something very interesting topic. So, I can keep going on in that. I'll come to this paintings wala part. That was an interesting example. किसी ने कभी कोई art gallery visit करी है? Yes, ma'am. उसमें वो abstract paintings देखी है, वो जो paint को ऐसे ऐसे करके अलग अलग कुछ होता नहीं है, कोई structure नहीं होता, और Yes, लोग ma'am. खरीद रहे होते हैं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Abstract painting. क्यों लगा रखा है इन्होंने? I was thinking, क्यों बना क्या दिया, क्यों लगा रखा है, कुछ समझ तो आ नहीं रहा. But later on, it's quite interesting, about. But उस टाइम पे यही लगता था क्या बना दिया और क्यों बना दिया, और फिर बना दिया तो लगाया क्यों है उन लोगों ने. Yes. और खरीद क्यों रहे हो भाई, इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो फालतू की पेंटिंग, मैं बना के दे देती हूँ. I used to say this. Basically, when in newspapers the cutouts are coming that it is in this million we have given painting, and when we see painting, बनाया क्या है इसने?
मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई ह्यूमन नहीं दिखा, कोई बर्ड नहीं दिख रहा, एनिमल नहीं दिख रहा, और वो पेंटिंग करोड़ों में बिक रही है। That is an मतलब सिर्फ abstract painting. मैम किसी ने मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में कुछ सुना है? यस मैम, मोनालिसा, लियोनार्डो दा विंची। क्या सुना है उसके बारे में? मैम आई ऑयल थिंक इट वाज पेंटिंग थी उसकी। पेंटिंग, और उसमें जो कलर्स भी उसने यूज किए थे वो भी काफी मतलब एनिमल वगैरह से एक्सट्रैक्टेड, और मैम प्लांट से उसमें एक्सट्रैक्टेड ये बताया गया है कि उसमें अगर आप दुखी होकर देखते हो तो वो दुखी लगेगी आपको, और खुश होके देखोगे हाँ तो यस आपको मैम, खुश लगेगी। उसकी स्टाइल। कभी इसका यस लॉजिक सोचा है ऐसा क्यों है? पेंटिंग क्या हम हिप्नोटाइज कर रहे हैं पेंटिंग को, या पेंटिंग हमें हिप्नोटाइज कर रही है? हो क्या रहा है ऐसा जो सारे इमोशंस रिफ्लेक्ट कर पा रही है? I'll give you a curious task here again. जब वापस ना मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में थोड़ा पढ़ना, मैथमेटिकल टर्म्स में पढ़ना, इन टर्म्स ऑफ उसकी सिमेट्री क्या है, उसके अंदर क्या एस्पेक्ट्स है, उसकी आईज, दोनों आईज के बीच में क्या रेशियो है, नोज, लिप्स, उसके फेस के चीक्स का क्या रेशियो है, वो सब पढ़ना। किसी ने सुपर 30 देखी है? यस यस मैम। उसके अंदर वो Yes, ma'am. 5 वैल्यू याद है? मैम 5 पार्डन। वैल्यू याद है? 5 वैल्यू भैया कुछ वो ऐसे अपनी करके। गर्लफ्रेंड का निकाल के बताता है, कितनी यू आर नॉट ब्यूटीफुल, दिस वैल्यू इज ब्यूटीफुल। आई थिंक ऑल द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही हैड डन टू फाइंड व्हिच Yes, फेस इज yes. ब्यूटीफुल। That is where, you know, maths is in the nature. और अगर किसी को ये चीजें पता ही नहीं होंगी तो वो enjoy कैसे करेगा? ऐश्वर्या राय is called, you know, the perfect face. She is the person who has a perfect face क्योंकि उसकी body के proportions ऐसे हैं, उसके face के proportions ऐसे हैं. And you know how I came to this? जब मैं आप लोगों की तरह उस कोर्स में थी, अपने BLED के कोर्स में थी, I came across this in a way. हम लोगों को बहुत फ्री टाइम मिल रहा था, बीच में ना कुछ काम नहीं था, कुछ नहीं था, असाइनमेंट दे दिए, सब कर दिए, बोर हो रहे थे, क्या करें, तो आसपास मॉन्यूमेंट्स में जाना शुरू करा। एंड मैथ्स उस वक्त इतना घूम रहा था दिमाग में that we started analyzing those Mughal architecture. And slowly and gradually, while talking to history people, जिन्होंने हिस्ट्री सब्जेक्ट ले रखा था, ये कर रखा था, we realized that maths is not only about daily life. डेली लाइफ नहीं है उसके अंदर, और क्या क्या है उसके अंदर? नेचर है, एस्थेटिक सेंस जैसे हमने बोला, उसके अंदर कल्चर और सिविलाइजेशन है जैसे हमें विशाली ने बताया, उसके अंदर सोसाइटल डेवलपमेंट है, नेशनल डेवलपमेंट है जैसे कुणाल ने बोला। तो अगर मैथ्स इतनी सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, इतने सारे मैथ्स के अंदर चीजें हैं, तो क्या मैं अगर हमारा लेसन प्लान बनाते हुए या मैथ्स पढ़ाते हुए मैं ऑब्जेक्टिव रखूं दैट आई वांट टू टीच एडिशन टू क्लास, क्या ये बहुत रहेगा? थैंक यू कुणाल, दिस वाज अ न्यू इंफॉर्मेशन टू मी। इट्स क्वाइट बोरिंग। हाँ, बोरिंग रहेगा, पर बोरिंग इंटरेस्टिंग हैप्पी सैड ये सब छोड़ दो, पर मेरे को बताओ क्या ये काफी रहेगा? क्या ये सारे जो मैंने बताए एम्स, ये सारे फुलफिल हो जाएंगे इससे? मैम नहीं, ओनली हमने एक लेसन प्लान डेवलप कर दिया, उसके थ्रू हम ये नहीं कर सकते इतना सब कुछ। ये Only बहुत नैरो एम नहीं लग रहा, छोटा सा एम नहीं लग रहा कि एक बहुत बड़े सागर से तुमने सिर्फ एक मग्गा निकाला है अभी? यस मैम। यस मैम। मतलब there is more aims to maths, there is something more, there is some higher More aim. specification we have to give so that it will convert more our aims. These are specific aims, specifics to related to concepts. और generally क्या रहता है, जैसे मैंने जब मेरी टीचर ये पढ़ा रही थी, मैं घर पे बैठी थी, मैंने छुट्टी मार रखी थी, ठीक है, और मेरे को नहीं पता था, इसलिए मैंने कितने साल अपने जो लेसन प्लान्स बनाए हैं वो सिर्फ इन्हीं एम्स पे बेसिस पे बनाए हैं। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे आ रही है, मैं जनरलाइजेशन पे कैसे लेके जाऊं बच्चों को, बच्चों को लॉजिकल रीजनिंग कैसे डेवलप करवाऊं, इन पे कभी सोचा ही नहीं। एंड व्हेन आई
when did I start thinking about it? When in a workshop, schools में भी हम teachers के workshop होते हैं ना, तो school में एक जना आकर बोल रहा था, मैंने कहा मेरे को मत बताओ, मैं को अपने lesson plans बनाने हैं, I am very busy, so I am not interested in your workshop. And she asked me, ठीक है, I'll ask you one question, अगर तुम explain कर पाए तो तुम मत लेना workshop. मैंने कहा हाँ ठीक है. मैंने कहा पर कोई simple सा पूछना, ये नहीं है भारी सा. And I thought that that person will literally come down with a maths question, कोई tough सा एक question देंगे मेरे को solve करने के लिए. And that person asked me define generalization. That simple question. What is mathematization? Who according to you is a child who can do mathematics? What is the characteristic of mathematic child? Mathematic mind. That simple question, and I could not answer. Blah blah. मैं बस यही करती रह गई थी. I kept thinking. Example दे रही थी. अरे वो जो बच्चा ऐसे कर ले, ये ऐसे करके, that kind of pauses that you take, that confidence went missing. Do you feel that was a very stupid thing? Any comments on this experience of mine? या आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये मैम तो पता नहीं कहाँ से आ गई है पढ़ाने के लिए, ना कुछ आता तो है नहीं. No ma'am. No ma'am, it's interesting. Naturally ma'am. मैम हमें भी लगता है, अब हम डाइट में आ गए तो अब भी हम अपने ऊपर रिफ्लेक्ट डालते हैं. जब हम 5th क्लास में थे, 6th क्लास में थे, तो हमें भी सोच सोच के अजीब लगता है. Right. So maths have these two domains. मैंने अभी आपको arbitrary necessary बताया. That was something new, I hope. अब मैं आपको बता रही हूँ मैथ्स के दो एम्स आते हैं, एक नैरो और एक हायर एम. अब आपका होम टास्क ये रहेगा, जैसे ही ये क्लास आज खत्म होगी, आपकी गूगल क्लासरूम में एक रीडिंग आएगी, एम्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग. मैंने एक बहुत सिंपल रीडिंग डाली है जिसमें मैंने एक टेबल बना के चीज एक्सप्लेन कर दी है. उतना पढ़ लोगे, काम चल जाएगा, काम ही चलेगा. बस अगर चाहते हो एक अच्छी टीचर बनना, अच्छा कुछ मतलब नॉलेज डेवलप करना, तो आई हैव अटैच पेपर्स ऑफ NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो आप सबको रटा हुआ होना चाहिए बाय द एंड ऑफ योर कोर्स. उसमें मैंने मैथ्स का सेक्शन ऐड किया, उसे पढ़ना, समझना उसमें क्या लिखा है. और दूसरा पोजीशन पेपर ऑफ मैथ्स. पोजीशन पेपर कुछ नहीं है, उन्हें लग रहा था मैं NCF में सब कुछ डिटेल करते रहेंगे सारे सब्जेक्ट में तो बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, फिर आप और मेरे जैसे लोग जो मोटी मोटी चीजों से दूर भागते हैं उससे दूर भागने लग जाएंगे. तो उन्होंने क्या करा, मैथ्स के लिए एक अलग पेपर बना दिया, एक अलग सेक्शन बना दिया, जिसमें उन्होंने उन्हीं सबको बहुत खोल के, दिल खोल के लिखा है, अपनी भावनाएं खोल के लिखा है, भावनाओं में बह के. ठीक है, तो वो दोनों पेपर्स आई हैव अटैच्ड, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने अटैच किया है. NCF आई फाउंड ओनली इन इंग्लिश. आई वांट यू पीपल टू रीड दैट. पढ़ेंगे हम सब? यस मैम, श्योर. Yes, ma'am. ग्रेट. ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. यहाँ तक किसी को कुछ कहना है, कुछ मन में सवाल, कुछ मन में कमेंट? मलाल कि मैम नींद आ रही है, थक गए, कुछ एनीथिंग लाइक दैट? एनी कमेंट, एनीथिंग? It's quite interesting till now. Thank you. It's interesting because of your interactions, your inputs. मैम Yes. मैम मेरा क्वेश्चन ये था मैम, जैसे अभी हमने देखा कि मैथमेटिक्स तो वाकई में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, हम तो ओनली डेली लाइफ से ही कनेक्ट कर रहे थे, बट इसके तो अदर और भी वैल्यूज हैं. मतलब कि ये जो हम भी निकल कर आए प्राइमरी क्लासेस से, अपर प्राइमरी से, तो हमें भी मतलब ये वैल्यूज हमारे अंदर भी इनकलकेट होनी चाहिए थी, बट ये नहीं हो पाई. बट ये हमारी ड्यूटी बनती है कि अब जब हम टीचर बने तो बच्चों के अंदर ये ड्यूटी, ये जो वैल्यूज है मैथमेटिक्स के प्रति, वो इनकलकेट हो. सो मैम तो उसके लिए हम क्या करें, हम अपनी मतलब की स्ट्रेटेजी में क्या करें कि हम बच्चों में जो है शुरुआत से ही ये डालें वैल्यूज? सबसे पहले इन वैल्यूज को खुद समझना शुरू करो. जब खुद समझ में आने लग जाएंगी तब अपने आप दूसरों को समझाने लग जाओगे, जैसे मैंने किया. मैंने भी नहीं पढ़ा ये सब, मेरे को भी नहीं पढ़ाया कभी. मैंने भी नहीं फर्स्ट सेकंड क्लास जैसे आप लोग निकलो ना, वैसे ही निकलूं, रादर आपसे भी पुराने जमाने की हूँ. तो मैंने कुछ नहीं करना शुरू किया, जैसे मैंने आपको बताया कि मॉन्यूमेंट्स में गई, उधर मैथ्स देखना शुरू कर दिया. आज मैं मैथ्स से शायद इतनी ऑब्सेस्ड हूँ कि अगर कोई छोटी सी भी चीज हो रही होती है ना, कि अरे यार ये देखो इसमें ये एंगल बन रहा है, अरे देखो उधर उधर ये नंबर्स का प्ले है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल.
मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती हूँ उधर ना मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए एस्टिमेशन, याद है सबको एस्टिमेशन करते थे, यस मैम। है ना? तो एस्टिमेशन पढ़ाने के लिए ना एग्जाम्पल वीडियो बना रही थी, तो मैंने एग्जाम्पल लिया था 223 प्लस 567। जरा इसको राउंड ऑफ करना नियरेस्ट टेंस पर। 223 को राउंड ऑफ करूंगी नियरेस्ट टेंस पे, क्या होगा? मैम 220 हो जाएगा। और 567 का क्या होगा? 570। मैम 570। 570। ठीक है, अभी इन दोनों को दो अलग अलग जने, और राजा नहीं बताएगा मेरे को, दो अलग अलग जने ऐड करो। 223 267 को ऐड करो और दूसरा जना 220 और 570 को। Raja will not tell me the answer. Raja will tell me why that answer is there. Okay, Raja? ओके मैम। 790 and it's 790. 790 again. दोनों के Both the answers 790। are 790. पर मैंने तो एस्टिमेट किया था, ये सेम कैसे हो गए? आपका एस्टिमेट करेक्ट है मैम। एस्टिमेट एक्यूरेट हो सकता है। राजा ये सेम क्यों है? राजा बताएगा। सोचो ना, थिंक। I don't want a एक correct answer, but think. यस मैम, मे आई? Yes. बिकॉज मैम जो पहला नंबर था हमारा 223, उसमें हमने 3 कम कर दिए, और जो दूसरा नंबर था 567, उसमें हमने 3 ऐड कर दिए। सो दोनों जगह इक्वल का हुआ है Perfect. 7 and ट्रांजेक्शन। 3 are complements of 10. Perfect, Raja. Perfect. और ये सिंपल, क्योंकि मैं अब मैथ्स के बारे में ना यहाँ सोच रही थी, ये सारी जो चीजें हमने पढ़ी, ये सब, ये जनरलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब के बारे में मैं सोचती रहती हूँ, पूरा टाइम मेरे दिमाग में चलता रहता है। तो मैं जनरलाइजेशन करते हुए इस चीज को फोकस कर पाई, इस चीज पे अपना ध्यान लेकर आ पाई, अमेज हो पाई इस चीज को, और भी ऐसे एग्जाम्पल बने। यस, ग्रेट कुणाल। अब आपने भी ये सोचना शुरू कर दिया है। Like Kunal gave me a new example, 221 plus 566. ठीक है, तो अगर आप क्लास में ये बच्चों को सिखाना चाहते हो, राजा, coming down to your question back, you want, to teach these things to children in your class, you need to start teaching it yourself. आपको पहले खुद को सिखाना शुरू करना पड़ेगा, खुद से सोचना शुरू करना पड़ेगा। जब वो खुद क्यूरियस एटीट्यूड रखोगे ना, ठीक है, तो बच्चों के अंदर भी डाल पाओगे। ओके मैम, आई Yes? ट्राई। Thank you. I hope others also will try, the other remaining people who are in the group. यस मैम। यस मैम। Great, great. चलो आप सब अपनी क्लास के टाइम, स्कूल के टाइम में वापस चले जाओ, और मेरे को बताओ जरा क्या क्या चैलेंजेस आते थे क्लास में, क्या चैलेंजेस आते थे मैथ्स क्लास में, क्या चैलेंजेस आते थे? मैम सबसे पहले तो मैथ्स की क्लास बोरिंग होती एक थी। एक करके। ओके, Raja, you've spoken a lot. You will put your message down in the chat box, और बाकी सब बोलेंगे। अब जो chat box में बात कर रहे हैं ना, I want to hear their voices. मैम हाँ जी। मैथ्स की क्लास बोरिंग लगती थी बहुत। लगती थी। और मैम मैथ से डर लगता था बहुत। your और एंड मैम टेबल Strict math। जल्दी से लर्न नहीं होते थे। ठीक है, और भी बता सकते हो, जरूरी नहीं है मैथ से लिमिट रखना, अगर और लगता है और कोई दिक्कत है वो सभी बता सकते हो। राजा, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स, मेरे को मिला नहीं अभी तक। सॉल्विंग टाइम काफी कम मिलता था, मतलब टीचर अपनी स्पीड से क्वेश्चन कर देता था और वो सपोज करता था कि हम भी अपनी स्पीड से ही और आंसर्स को ट्राई करें। एग्जाम में ऐसा आता है क्वेश्चन पेपर में सॉल्व में ये समझ बेटा जो बोल रहा है, आपकी आवाज बहुत दब रही है, थोड़ा तेज। कौन सा मेथड यूज करना किसी को समझ आया? आई गेस भावना वाज स्पीकिंग। किसी को समझ आया भावना क्या कहने की कोशिश कर रही थी? नो मैम, बहुत लो थी वॉइस। भावना थोड़ा सा तेज करके बोल पाओगे एक बार? मैम जब क्वेश्चन पेपर आता था सामने, उस समय जब ऐसे क्वेश्चन में ना हमेशा लिखा होता सॉल्व दिस क्वेश्चन,
पर हमें ना उस समय आंसर क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाती थी कि कौन सा मेथड कौन से क्वेश्चन पे यूज करना है। Okay, I'll put your thought differently. क्वेश्चन आता था, हम क्वेश्चन समझने की जगह ये कोशिश करते थे कि इस क्वेश्चन में कौन सा प्रोसेस लगना है। जैसे वर्ड प्रॉब्लम आया तो वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के वर्ड प्रॉब्लम समझने की कोशिश नहीं करते थे, बट वो हिंट्स ढूंढते थे कि ये वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के कैसे पता चलेगा कि एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ऐसे करते थे हम लोग। यस मैम। Yes, ये भी ma'am. किया है। और कुछ इश्यूज होते थे इसके अलावा, मतलब कोई सोशल इश्यूज कभी फेस किए? जैसे मैंने तो बहुत फेस किए हैं। मेरे केमिस्ट्री वाले सर थे, वो मेरे को कहते थे कि बेटा तेरे से केमिस्ट्री नहीं होगी, तेरे को आगे रोटियां बेलनी है तो तू रहने दे, तू मत कर केमिस्ट्री। ऐसे भी किसी ने कुछ इश्यूज सॉल्व फेस मुझे किए हैं? कुछ हुआ बोला है? जो था कि मैथ्स अच्छा नहीं है तो तुम फिजिक्स अच्छा नहीं कर पाओगे। वो अलग बात है, मेरी फिजिक्स काफी अच्छी थी, बट एक फर्स्ट यही आता था, जो भी बोलते थे मैथ्स अच्छा नहीं, फिजिक्स अच्छी है, कहाँ, वो तो बहुत अच्छी है, कैसे। थैंक यू क्वाइट वैशाली। यस यस, आई अंडरस्टैंड। पर वर्कशॉप के बाद ना आप मेरे को फिजिक्स में थोड़ा हेल्प कर देना, कुछ कॉन्सेप्ट्स मेरे वीक हैं उधर। आई वुड रियली श्योर वांट योर मैम। हेल्प इन इट। और किसी ने कुछ कभी फेस किया? कुछ होता था, देखो सब सीक्रेट रहेगा, हम सब एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, एंड वी कैन बी वल्नरेबल, वी रिस्पेक्ट ईच अदर। भावना, once again please, I'm so sorry. What were you saying, भावना? मैम क्लास 8 में मैंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस किया था। जैसे कि? बाकी मैं पूरा दिन मैथ सॉल्व करती थी और एंड में ठीक है, चलो मैथ्स से थोड़ा हटके बाकी क्लास की कोई दिक्कतें नहीं होती थी क्या? सिर्फ मैथ्स में दिक्कत होती थी? सब्जेक्ट्स में नहीं जाने को बोल रही हूँ, पर वैसे क्लास में कभी कोई दिक्कत होती थी? यस मैम। जैसे कि? मैम जैसे कि समर के टाइम तो बस 12 के बाद नींद आने लग जाती थी, फिर पता ही नहीं क्या होता था क्लास में। एक दिक्कत मैं बताऊँ क्या होती थी मेरे साथ? 11th-12th में स्पेसिफिकली होती थी। मैं क्लास में फर्स्ट सीट पे बैठती थी, मेरे को फर्स्ट सीट बहुत पसंद थी, आई डोंट नो व्हाई। और जो लास्ट बेंचर्स होते थे वो बदमाशियां शैतानियां करते रहते थे, पढ़ते नहीं थे। तो जो मेरी बायो वाली टीचर थी, ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल गलत है। हाँ, बैक बेंचर्स आर मोस्ट फेवरेट पर्सन इन द क्लास। नहीं नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा सारे बैक बेंचर्स ऐसे करते थे। जो मेरी क्लास में बैक बेंचर्स थे वो बहुत शैतानियां करते रहते थे। मैं अपनी क्लास की बात कर रही हूँ, मैं जनरल कमेंट नहीं पास कर रही, ठीक है? Otherwise I would be facing a social issue. I am not passing any stereotype. I'm sorry if that came that way. जो मेरी क्लास में मेरे जो लास्ट सीट पे बैठते थे ना, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे स्पेसिफिकली जोस, वो आप मानोगे नहीं, स्कूल आधा घंटा जल्दी आते थे लास्ट सीट पकड़ने के लिए कि हम लास्ट सीट पे बैठेंगे। तो मेरी बायो टीचर ने क्या करना शुरू किया, मेरे को बोलना शुरू कर दिया, मेरी सीट फिक्स कर दी उन्होंने कि तुम्हारी सीट लास्ट सीट है, उन सारे बच्चों के बीच में जो हंगामे कर रहे होते थे पीछे बैठ के, वहां मेरे को बिठा दिया गया था। एंड दैट वाज अ वेरी वेरी बिग फिजिकल चैलेंज आई फेस्ड इन माय क्लासरूम कि भाई क्यों। मैं विश करती थी क्लास में ना रोज और कॉलम्स ही नहीं होते, कोई लास्ट सीट होती ही नहीं, ऐसा होती क्लास हमारी। काश। मेरे को बायो लैब इसलिए बहुत पसंद थी, उधर सारी अरेंजमेंट ही ऐसे थी कि उधर कोई लास्ट सीट हो ही नहीं सकती थी। सोना, मेरी वॉइस आपके लिए लो हो रही है? यस मैम। मैम ऐसा लग रहा है बहुत दूर से आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है। मैंने लैपटॉप को थोड़ा पास बुला लिया, थक गया होगा, कुछ नहीं होता। अभी ठीक है? नो मैम। अभी भी ठीक नहीं है? शायद मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके ओके, थोड़ा सा उसे सही करने की कोशिश करो। पर कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज शेयरिंग, दैट वाज अ फिजिकल चैलेंज आई फेस इन माय क्लासरूम कि यार ये क्लास रोटेशनल सर्कल में होती, इवन रोटेशन हेल्प नहीं करती थी कुणाल, क्योंकि वो तो सिर्फ बैक बेंच में जो बच्चे बैठते थे वो तो सिर्फ एक ही दिन आगे आते थे ना, बाकी दिन तो पीछे पीछे होते रहते थे।
फ्रेंड्स के साथ बैठते तो सीट चेंज कर देते थे, अगेन अ सोशल काइंड ऑफ चैलेंज। Problem and rotation is a problem. Okay, okay. Any other infrastructural barrier that you faced? किसी को कभी पंखे की आवाज ने तंग नहीं किया क्लास में? नहीं मैम, पंखे की आवाज और खिड़की से अगर जो धूप आती थी कई बार वो इरिटेट करती थी बोर्ड पे देखने के लिए। बेसिकली स्मार्ट बोर्ड पे काफी प्रॉब्लम फेस होती थी। ओके, थैंक यू। मेरे को एक दूसरी मेमोरी याद आई। क्लास के कॉर्नर्स की जो सीट होती थी, जो विंडो के ऑपोजिट डोर की साइड होती थी, हमें ना कहना पड़ता था मैम कबर्ड का दरवाजा खोल दो ताकि वो धूप रुके और हमें बोर्ड पे दिखना शुरू होए क्या है। धूप होती थी। पंखे की चिड़चिड़ चू चू भी किसी को तंग करती थी? मैम कई बार स्कूल में लाइट चली जाना, 2-2 3-3 घंटे तक लाइट चली जाती थी। उधर तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना, एनडीपीएल वालों को कुछ भी नहीं कह सकते उधर। पढ़ाती रहती थी मैम। अच्छा, अगर मैथ्स की क्लास बिगनिंग में मिस हो जाए और सर कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ाए और हमें उस कॉन्सेप्ट के बारे में कोई आइडिया ना हो, तो फिर तो सर वो कॉन्सेप्ट बार बार बोलते जाते हैं और हमें कुछ पता नहीं और हमारी पूरी क्लास ब्लैंक जाती थी उस टाइम पे। इसे हम टेक्निकल भाषा में बोले तो कॉन्सेप्ट गैप बोलते हैं, लैग टाइप्स। मेरे को फिजिक्स आज तक इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि मेरे को काइनेस्थेटिक्स समझ नहीं आई, मैं उस टाइम पे स्कूल नहीं जा पाई। मेरा वो लैग बना हुआ है कॉन्सेप्ट का। रूटिंग। अच्छा, पता है कभी कभी क्या होता था कि किसी दूसरी क्लास का सब्स्टिट्यूशन पीरियड लगा, पीटी पीरियड लगा, वो लोग शोर मचाते हुए, हल्ला मचाते हुए बाहर जा रहे हैं और हमारा जितना ध्यान लगाने की कोशिश हो रही होती थी पढ़ाई में, सब डाइवर्ट हो जाता था। या फिर अगर प्लेग्राउंड से आवाज आ रही होती थी तो उधर नीचे देख रहे होते थे, गोल हो गया या बास्केट हो गई, यही ध्यान जाता था। मेरा तो बहुत जाता था ध्यान ऐसे। मैम और एनुअल किसी को भी फंक्शंस जाता के था? टाइम पे जब हम लोगों की प्रैक्टिस होती थी तो सारे टाइम गानों पे ही ध्यान होता था उस टाइम पे, क्योंकि वो वॉइस वहां पे आती रहती थी स्पीकर्स की और प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती थी। अंकिता इस टेलिंग की लाइट चली जाती थी मैम फिर भी पढ़ाती रहती थी। बच्चा ये तो कुछ भी नहीं है। मेरा ज्योग्राफी का पेपर था 10th क्लास में। उस टाइम पर अर्थ को एक आया, मैम ने कहा पेपर मत छोड़ो, वो करो। हमने कहा अर्थ को एक आ रहा है, नीचे जाना चाहिए। नहीं, नीचे नहीं जाना। अर्थ को में बैठ के हमने पेपर लिखा था, इमेजिन। बार बार टीचर्स आए, यस, टीचर्स कमिंग इन एंड आउट। मैम ये तो डेंजरस हो सकता था। No, she was a geography teacher. Maybe she knew कि इतना high richer scale का नहीं है। उन्हें पता होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा। I don't know, but that was a very interesting experience. Geography teacher ही थी हमारी invigilator. Great. आप लोगों ने बहुत सारे challenges, share किए हैं. And I would say go back with this question. जब घर जाओ आज सोचो, आज जब जाओगे ब्रश करते हुए, खाना खाते हुए, सब्जियां काटते हुए मम्मी की हेल्प करना खाना बनाने में, ठीक है, तब थिंक अबाउट दीज चैलेंजेस। और क्या क्या चैलेंजेस होते थे, थिंक अबाउट दोज स्मॉल इवेंट, स्मॉल स्टोरीज जो आपकी क्लास में होती थी, जो आपके लिए कोई चैलेंज क्रिएट कर देती थी, या आपके लिए नहीं तो किसी और के लिए कर सकती थी। जैसे मैंने अभी शेयर किया मेरे स्कूल एक्सपीरियंसेस, ऐसे सोचना है इसके बारे में, ठीक है? सोचोगे? यस मैम। यस मैम। चलो। Anyone was saying anything? ट्रेन आने पे डिस्ट्रैक्शन होता था। हाँ, अंकिता आपका बाहर जाके भीगने का मन करता था बारिश में? Yes, ma'am, sometime. Sometimes, yeah. I know many of you also wanted to go to PT period. सारे पीरियड कैंसिल कर दो, ग्राउंड में भेज दो। नोटिस आते थे। हाँ, थैंक यू, वेरी गुड पॉइंट। Who said this, Kunal? I also remember many times इतनी शिद्दत से शेक्सपियर के जूलियस सीजर वाले चैप्टर को समझने की कोशिश हो रही होती थी, बीच में नोटिस आ जाता था और मैम कहती थी अपनी डायरीज निकालो, ये नोट लिखो, साइन करवाओ। सब कंसंट्रेशन गई पानी में।
tomorrow will be the holiday. Okay, that would be another level of distraction. I can understand. Okay, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं आगे. इस क्वेश्चन को सोचना, हम इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे, ठीक है. कमिंग टू रोल ऑफ लैंग्वेज. क्या मैथ्स क्लासरूम में लैंग्वेज का कोई रोल है, या ये लैंग्वेज क्लासरूम में रहती है बस? मैम ऑल्दो मैथ्स की खुद की भाषा है, बट फिर भी लैंग्वेज चाहिए होती है, लाइक वर्ड प्रॉब्लम्स. किसी ने कभी स्कूल में ऐसा फेस किया है, टीचर बोलती थी हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में हैं, या फिर आपको इंग्लिश में बात करनी चाहिए, टॉक इन इंग्लिश. मेरे स्कूल में फाइन लगता था 200 रुपए का हिंदी में बोलने के लिए, और हिंदी वाली टीचर कहती थी हिंदी पीरियड है, हिंदी में बोलो. ऐसा होता था कभी किसी के साथ? यस मैम, हमारे जो हिंदी के सर थे, चार्ज उन्होंने कह रहे गुड मॉर्निंग सर, तो कहते हैं सुप्रभात बोलो. Anyone else was also saying? Vishali, you were saying something, yeah, Ankita? I was saying that fine was there, but we are not supposed to give that fine. But yes, it's a rule that they have a fine. You have to speak that particular language in that area or school premises. और हमारे लिए हम लोग बच्चों में ना आपस में हम मजाक उड़ाते थे कि ठीक है हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं, एसएसटी बुक्स एसएसटी में, चलो इंग्लिश में एसएसटी में बोल लिया, साइंस में इंग्लिश में बोल लिया, इंग्लिश में बोल लिया, हिंदी में बोल लिया, संस्कृत में बोल लिया. चलो मैथ्स में, मैथ्स की कौन सी भाषा भाई, मैथ्स में कैसे बोले मैम, कैन आई ड्रिंक वाटर, मैथ्स में कैसे बोले जाए. एंड वी यूज्ड टू सिट एंड यू नो मेक डिफरेंट कोड्स कि कौन कौन से सिंबल कौन कौन से वर्ड को रिप्रेजेंट करेंगे. We used to do that kind of, you know, fun activities, teasing each other and all those things. आपने कभी करा इसके अराउंड डिस्कशन? मैम डिस्कशन तो नहीं किया, पर कई बार दिमाग में ख्याल आया कि मैथ्स की लैंग्वेज कौन सी है. हम हिंदी इंग्लिश तो बोल लेते हैं, बट मैथ्स की लैंग्वेज का कई बार आया ध्यान. सम को हिंदी में क्या बोलते हैं? सम, ये वर्ड सुना हुआ है आपने? मैम जमा, जोड़. जमा, जोड़. सॉरी, मेरी हिंदी की राइटिंग थोड़ी गंदी है. और कुछ बोलते हैं? योग. थैंक यू, थैंक यू. तो मैं इस एक्सपीरियंस को भी शेयर करना चाहती थी. अभी दी ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, उधर हम हिंदी में कंटेंट बना रहे थे. मेरी हिंदी थोड़ी सी कच्ची है, तो मेरे को नहीं पता मैंने जमा की जगह कैसे योग लिख दिया. मैं गूगल इनपुट टूल्स में टाइप कर रही थी, तो उसने अपने आप इंटरप्रेट कर लिया होगा कुछ. एंड बाद में जब वो प्रेजेंटेशन देनी थी ना कि मैंने किस तरीके की वीडियो बनाई है, क्या है, मैं खुद ही अटक गई. ये वर्ड क्या है? योग. ये योगा होना चाहिए, बट योगा यहाँ पे क्या आ गया? एंड आई केप्ट थिंकिंग. एंड नाउ टेल मी, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, were you aware of these words? Do you think आप यहाँ पे अटक जाओगे? They are general words. We don't think we will sink in them, but we know right now we know about these हाँ, words. अभी पता है, पर पहले पता था कुछ है ऐसा? No, some is the favorite word we will choose around these words. इतना डब्बा गुल भी नहीं है. कुणाल, मेरे को जरा बताना, एक्यूरेट को हिंदी में क्या बोलेंगे बिना गूगल करे? What is the mathematical term of accurate? Sateek, no. Sateek is a common word that we use. जो हिंदी मीडियम के बच्चे ना वो नहीं बताएंगे, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बताना ये क्या है. No idea, ma'am. मैम मे आई? You are Hindi medium and no. हिंदी मीडियम स्टूडेंट. No. Accurate का मैथमेटिकली बुक्स में उसे परिशुद्ध बोला जाता है कुणाल.
तुम समझा दोगे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट टर्मिनोलॉजी, वोकैबुलरी। साथ, जैसे हम सम बोलते हैं, मैं ये भी बोल सकती हूँ ना सब साथ में है, तो साथ में कितने हो गए, तो वो साथ में तो मैथमेटिकल टर्म नहीं जाता, मैथमेटिकल वोकैबुलरी किसी ने शुरू में ही बोल दिया था, मैथ्स हैज इट्स ओन लैंग्वेज। अब ये सन्निकटन बताओ क्या होता है? ओके, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स अदर देन राजा। राजा सही लिख रही हूँ मैं? यस मैम, आपने ठीक लिखा है सन्निकटन, बट ऑप्टिमाइजेशन नहीं है मैम। अप्रोक्सीमेशन लिखा। अप्रोक्सीमेशन, यस मैम, एग्जैक्टली। सन्निकटन इज अप्रोक्सीमेशन। यस मैम, एग्जैक्टली। हम लोग करते रहते हैं। सी हाउ वोकैबुलरी, सिर्फ मैथ्स की वोकैबुलरी को मैंने डिफरेंट लैंग्वेज में आपके सामने रख दिया, तो आप लोग कैसे फंस गए? ऐसे मैम लाइक अभी आपने मैथमेटाइजेशन यूज किया था वर्ड, उसका शुद्ध हिंदी रूप मैथमेटाइजेशन ऑफ बताना क्या होता है हिंदी मैथमेटाइजेशन का? चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण। ओके फाइन, ओके 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 ओके, ठीक है। मैथमेटिकल लास्ट करते हैं, मैथ ऑपरेशंस। ये क्या होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कोई बताएगा क्या क्या होते हैं? मैम गणितीय संक्रियाएं, प्लस माइनस, ऐड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा। यस, यानी हिंदी में ना ऑपरेशन को संक्रियाएं बोला जाता है। सेम है कुणाल, मेरे को भी चक्कर आने लगता है। बट डू यू रियलाइज आप सबकी, आई एम वेरी श्योर आप सबकी जो मदर टंग है आधे से ज्यादा लोगों की, मेरी भी हिंदी है, और हम हिंदी और इंग्लिश में ही जब मैथ्स में स्विच कर रहे हैं, अगर मैथ्स की वोकैबुलरी में स्विच कर रहे हैं, हम अटक जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट आते हुए भी नहीं बता पा रहे। इज इट हैपनिंग? बट ये दोनों बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हिंदी वाले इंग्लिश में करनी पड़ती है, इंग्लिश वाले को हिंदी में करनी पड़ती है। कम ज्यादा हो सकती है दोनों को, बट करनी पड़ती है। दोनों को फेस करनी पड़ती है, और टीचर को तो डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास हिंदी यस मीडियम मैम, बच्चा एज भी ए हो सकता टीचर है, इंग्लिश हमें मीडियम। डबल करनी पड़ेगी। अगर हमें स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले मिल गए और हम इंग्लिश स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं, तो हमें हिंदी में पढ़ाना पड़ेगा हमें। I'll increase your difficulty का लेवल। अब इमेजिन करना आपकी क्लास में एक बच्चा ऐसा है जिसको तमिल आती है, ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती, उसे कैसे पढ़ाओगे मैथ्स? उससे कैसे बात करोगे? और दूसरा ऐसा बच्चा है जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उससे कैसे बात करोगे, उसे कैसे पढ़ाओगे? ये दो क्वेश्चंस है आपके लिए, सोचो इसके बारे में, और मेरे को कल इसके आंसर्स चाहिए। आपके आंसर्स यहाँ पे आएंगे कल, मिल सकते हैं मेरे को आंसर, सोच सकते हैं हम सब? यस मैम। किसके बारे में सोचना है, कोई मेरे को ब्रीफ करेंगे? ये किसके बारे में सोचना है? 3 क्वेश्चंस आपको सोचने को दिए गए हैं, क्या क्या है? एक तो हमें यही सोचना है कि हमें अगर सपोज साउथ साइड में पढ़ाना पड़ जाए, जहाँ तमिल या कन्नड़ी लैंग्वेज होती है, तो वहाँ मैथमेटिक्स बच्चों को आपकी कैसे क्लास में पढ़ाएंगे? एक बच्चा है साउथ से, आपकी क्लास में एक बच्चा है, उसकी मम्मी का ट्रांसफर हो गया है दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो अब वो तमिल से आया है, उसको सिर्फ तमिल आती है, तो उसे कैसे पढ़ाना है? एक ही बच्चा है तमिल का क्लास में, बाकी सारे हिंदी इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन मैम, एक बच्चा जो मतलब कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जो मतलब बच्चा देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, देख उसको सकता या कैसे? सुन सकता, उसके जो लिए बच्चा फिजिकली हैंडीकैप नहीं है, मेरा कोई भी बच्चा ना, वो बच्चा देख नहीं सकता, वो बच्चा देख भी सकता है, वो बच्चा अच्छा खासा चल भी सकता है, कूद भी सकता है, तुम्हें एक लात मार के नीचे भी गिरा सकता है, पकड़म पकड़ाई में तुमसे तेज भी भाग सकता है, पर वो बच्चा सिर्फ सुन नहीं सकता। हियरिंग इम्पेयरमेंट, as Kunal said, that child only has hearing impairment, वो सुन नहीं पा रहा है। जैसे बट मैम तुम वो लोग देख तो कभी, पा रहा है, देख पा रहा है, हाँ तो वो हम सब कुछ कर पा रहा है, वो सब कुछ कर पा रहा है, बस सुन नहीं पा रहा है। जैसे तुम लोग कभी होता होगा ना, तुम्हारे कान में पानी घुस जाए, तुम उस दिन सुन नहीं पाते हो, ऐसे ही वो बच्चा सिर्फ सुन नहीं पा रहा है, बाकी सब सही करता है।
मैम फिर जो हम उसको बोलना चाह रहे हैं उसको ब्लैक बोर्ड पे या कॉपी में लिख देंगे, वो पढ़ लेगा। ज्योति ये सब और सोचना है इस सब के बारे में, कल बताना मेरे को। आज टाइम खत्म हो गया, मैं तो बात कर सकती हूँ पर आप लोग थक गए होगे सुन सुन के। मैम नहीं थके, मजा आ रहा है आज तो, काफी दिनों but बाद और क्लास भी में। सिर्फ आज ही मजे नहीं लेने ना, कल भी लेने हैं। आज सब कुछ पढ़ा दूंगी तो कल क्यों आओगे? तो वन क्वेश्चन इज थिंक अबाउट द चाइल्ड, उसको कैसे पढ़ाओगे जिस बच्चे को तमिल आती है, ना हिंदी आ पा रही ना इंग्लिश आ पा रही। दूसरा बच्चा है जो सुन नहीं पा रहा है, उसे कैसे पढ़ाओगे। तीसरा क्वेश्चन क्या था? अभी कुछ याद आया? मैम आपने हमें एक पेंटिंग के बारे में रिसर्च करनी बताया, मोनालिसा पेंटिंग। हाँ वो तो क्यूरियस क्वेश्चन है, वो आप लोग सर्च करो। और वो अगर किसी को कुछ मिलता है ऐसा जो सबके साथ शेयर करना चाहता है तो क्लासरूम में डाल देना, गूगल क्लासरूम में पोस्ट क्रिएट करना, वहां डाल देना, वरना ग्रुप पे डाल देना। हम सब इसके बारे में थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी हमारी। जैसे कुणाल इज bringing a new equation of E is equal to mc square. Interesting कुणाल। तीसरी चीज क्या थी? जल्दी बताओ, मैं छोड़ूंगी नहीं ऐसे। मैथ्स पढ़ाते वक्त क्लासरूम में क्या चैलेंजेस आते हैं? राइट राइट। हु वाज दिस? रितिका? कौन बताया, किसने बताया ये? मैम रितिका। रितिका, यस। दीज आर द थ्री थिंग्स दैट यू हैव टू थिंक अबाउट। और कल क्लास में मेरे को हर किसी की आवाज आनी चाहिए इस बारे में, ठीक है? ठीक है। ओके मैम। अब आज का होमवर्क, सबसे पहले तो मैं अभी आपको एक लिंक शेयर कर रही हूँ। इस लिंक का मैं नाम नहीं बताऊंगी, लिंक का नाम आप लोग याद रखोगे क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सब ये सीखो। चैट बॉक्स में लिंक आया? ग्रेट। यस मैम, आ गया। ये फॉर्म आप सबको आज रात तक भरना है, कल क्लास से पहले तक भरना है। कोई आंसर विकिपीडिया से कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, कहीं इधर उधर से बुक से खोल के कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। अपनी समझ लिखनी है, अपनी भाषा लिखनी है। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होता, चलेगा। मेरे को हिंदी इंग्लिश मेरे को आती है। किसी और लैंग्वेज में लिखना चाहते हो लिख देना, ठीक है? मैं आपसे फिर 1 to 1 बात करके उसे ट्रांसलेट करके किसी तरीके से भी हैंडल इट आउट। But I need your personal answers. I don't want you to copy from here and there. मेरे पास वो रेड मार्क आ जाएगा, मैं रेड मार्क क्वेश्चन आंसर्स पढ़ूंगी भी नहीं, ठीक है? ये फॉर्म भर देंगे सब? यस मैम। Cool. आप सबको मैं गूगल क्लासरूम के थ्रू लेकर जा रही हूँ एक बार, ताकि आप सब जान जाओ। एंड देन इट वुड बी अ बाय फ्रॉम माय साइड, द थिंग वुड बी ऑन योर हैंड कि आपको शेयर करना है, कुछ करना है तो। 1 minute. You all can see my Chrome. आप सब देख पा रहे हो ये? यस मैम। तो ये आपकी क्लासरूम है। अगर आप देखोगे, अभी तक आप इतना देख पा रहे थे ना। देखो ये फॉर्म भी अभी तक लोगों ने भरा नहीं है, सिर्फ 15 लोगों ने भरा है। इसे भी भरो फटाफट से, थॉट्स अबाउट इंक्लूजन को। मैं सारे लिंक ग्रुप पे भेजूंगी, ध्यान से पढ़ना, ठीक है? आज का ये देखो, ये सारी रीडिंग्स है। हमने एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स पे बात करी है, ये सब पढ़ना। रीडिंग्स आपके काम आएंगी। और हमने चैलेंजेस के ऊपर बात करी है, तो इन चैलेंजेस के ऊपर भी पढ़ना, ठीक है? इसके बारे में हम कल बात करेंगे। बेहतर होगा अगर आप पढ़ के आ पाते हो, नहीं पढ़ के आ पाओगे तो हम इसके बारे में कल बात करेंगे, तो कल पढ़ेंगे इसे, ठीक है? और जो यस मैम। लिंक मैंने अभी शेयर किया है वो इस फॉर्म का लिंक है, तो आप सब ये करके रखोगे, ठीक है? यस मैम। आप इस क्लासरूम को खुद एक्सप्लोर करना, मैं नहीं लेके जाना चाहती।
यहाँ पे देखना क्या होता है, स्ट्रीम में जाके क्या होता है, क्या आप लोग कुछ पोस्ट कर पाते हो, आप क्या अपने फ्रेंड्स के पोस्ट को शेयर कर पाते हो, पढ़ पाते हो, कमेंट कर पाते हो. यू नीड टू एक्सप्लोर ऑल दिस ऑल्सो. करेंगे सब ये एक्सप्लोर, धीरे धीरे टाइम के साथ एक्सप्लोर करते रहेंगे गूगल क्लासरूम. ठीक है. यस मैम. So this is the end for today from my side. हम कल मिलेंगे. हम लोग 5 मिनट पहले लिंक स्टार्ट कर देंगे. हाँ जी मैम. Just sir, Rajesh sir. Hello sir. Sorry to interrupt you in the. No problem. No problem. Yeah. राजेश जी हमारे साथ जुड़ गए. वॉइस इज ब्रेकिंग. गरिमा जी आप बता दो क्या है, थोड़ा सा मुझे कनेक्ट करो. मीना मैम की आवाज काफी. मीना जी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है. And please say something about this work. गरिमा जी आप बताना. That our students really get. Okay, I guess मैम आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, इसलिए मैं सर को ब्रीफ कर देती हूँ. सर हम मैथ्स इंक्लूसिव टीचिंग की बात कर रहे हैं एंड फोकस हमारा होल नंबर अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है. आज की हमारी जो वर्कशॉप रही है वो बेसिकली मैंने कोशिश की है कि बच्चे मैथ्स के स्वभाव को जान पाए कि मैथ्स का नेचर क्या है और उससे एम्स डेवलप कर पाए. सर आपकी आवाज इससे फिर चैलेंजेस पे आए हैं, कल चैलेंजेस पे बात करके थोड़ी जाएंगे. अनम्यूट कीजिए. नो व्हाट इज हैपनिंग. बस सर. नो सर. ठीक है गरिमा मैं सुन रहा हूँ, आप बोलो. नहीं बस तो यही था. कल हम थोड़ी अडेप्टेशंस के बारे में बात करेंगे, पेडागोजी बिल्ड करेंगे अपनी कि कैसे हमें पढ़ाना है. फिर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर धीरे धीरे डिटेल में जाते रहेंगे कि एक एक कॉन्सेप्ट को क्या क्या होता है, कैसे पढ़ाया जाए. TLM से बात करेंगे, लेसन प्लान से बात करेंगे. थैंक यू. गरिमा कहाँ से बोल रहे हो आप? सर मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ. वैसे मैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की मास्टर स्टूडेंट हूँ. वो तो मुझे पता की बात हो चुकी है, बट अभी आप दिल्ली में कहाँ से बोल रहे हो? दिल्ली रोहिणी. अच्छा रोहिणी से बोल रहे हैं. ज्यादा फॉर नहीं है, दिल्ली तो दूर. अच्छा मैं जितने भी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स में से मैं चाहता हूं कि कोई भी एक बच्चा 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए आज हमने क्या सीखा इस पर कोई भी कमेंट करें. गरिमा इफ यू डोंट माइंड. Sure, I would love to hear them. Any one student. What about the topics we have studied or our feedback? So feedback भी चाहिए और थोड़ा सा learning क्या रही 1 या 2 sentences में. Sure, sir. So basically today when ma'am told about mathematics, we started with a simple mathematical statement that sum of 2 odd number is what is that. Then we came up with various ideas and always in the statement even number ma'am tells about the answer of a student of grade 3 at that time. We also tell the answers according to our when we came to know about that concept or when we know that what is its answer. Then we again came with mathematical's importance, its nature, and then we shifted our concept to the mathematical challenges that we face in classroom when the teacher is studying or when the student wants to study and he is facing that what we are facing as a student, the challenges in mathematics. And then ma'am gives examples of Japan about how mathematics can be transferred from our day-to-day life to what ma'am said that it's not only the part of basic mathematics as daily life. We have the idea to see it in various terms there. And then ma'am gives at last about the Google Classroom where she told that she had posted some things and we have to go through it. And in next class we will study and we have to give the answer honestly. That is according to our wish. And it was a very wonderful session today. And I request someone to give the feedback
नाउ दिस इज द एंटायर लर्निंग। गरिमा जी देखिए कितना लर्निंग पूरा डिटेल में बताया, बहुत ही ब्रीफली, वंडरफुल। हैप्पी वैशाली, ब्रीफ लर्निंग जो आपने शेयर की मुझे भी समझ में आया थोड़ा थोड़ा। अभी कोई भी एक स्टूडेंट फीडबैक दे पाएगा कैसा लगा? यस सर, मैं राजा आप बोलो। सर आज की जो Brief हमारी बोलना वर्कशॉप का है। फर्स्ट डे था सर, बहुत अच्छा लगा हमें। हाँ सर, बहुत ही अच्छा लगा सर। हमने जाना कि किस तरह से हम मैथमेटिक्स को जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं इंक्लूसिवली। इंक्लूसिव सेटिंग्स में हमें मैथमेटिक्स को किस तरह से इम्प्लाई करना है, किस तरह से हमें बच्चों को इसमें सभी को जोड़ना है। ये आज की वर्कशॉप बहुत ही अच्छी लगी इस वे में मुझे, और मुझे उम्मीद है कि हमारे आने वाले जो जब वर्कशॉप का एंड आएगा तो हम जो है परफेक्टली मैथमेटिक्स को जान पाएंगे, और जब हम टीचर बनेंगे तो इसको हम इम्प्लाई भी कर पाएंगे। ये केवल टीचर बनने तक का कंटेंट नहीं है। मैं एक और चीज आप लोगों के साथ शेयर करूं कि अभी आपको सीटेट क्लियर करना है, अभी आपको डीएसएसबी का एग्जाम क्लियर करना है, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दिस ऑल नॉलेज इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर सीटेट एज वेल एज डीएसएसबी एग्जाम। और मैथमेटिक्स में सीटेट में सबसे ज्यादा लो स्कोर आता है, उसमें पेडागोजिकल भी रहता है और कंटेंट भी रहता है, दोनों तरह का इंफॉर्मेशन रहता है। तो मैथमेटिक्स में सबसे लो स्कोर देखते हैं, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। इसकी वजह से हमारे बहुत सारे बच्चे जो है वो डीएसएसबी क्लियर नहीं कर पाते, या फिर जो है सीटेट क्लियर नहीं कर पाते, उसमें नंबर बहुत कम रह जाते हैं। तो इंग्लिश के लिए भी हम बाद में प्रयास करेंगे, बट अभी इस समय आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये टाइम है। अभी आपके प्री फाइनल्स खत्म हुए हैं और ये बहुत ही अच्छा समय है कि जब आप लोग बहुत अच्छे से इसको और इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं तो रिकॉर्डिंग करके रख लें। इसमें से जितना कंटेंट आप नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स बनाएं। तो मैं सभी स्टूडेंट से ये निवेदन करूंगा कि दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल वर्कशॉप, और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, यू नो इट इज अ वंडरफुल फाउंडेशन। और गरिमा को मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, बट असीम प्रेम जी के साथ हम बहुत कई काम कर चुके हैं। तो वो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे से ग्रिल करती हैं और बहुत अच्छे से पेडागोजिकल एस्पेक्ट्स पर बहुत फोकस करती है। तो आई होप कि गरिमा के साथ काफी काम हुआ होगा, अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी ने किया होगा, जिसकी डिटेलिंग वो अपने आप बताएगी। बट अजीम प्रेम जी के साथ मैंने इंडिविजुअली बहुत काम किया है। दरियागंज डाइट में जब मैं था तो मैंने उनके साथ बहुत सारे कई कोर्सेज बना, टूल्स तैयार किए हैं, और बहुत सारी फैकल्टी को मैं इंडिविजुअली भी जानता हूं वहां पर जो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे घुमन एड़ा के स्टूडेंट्स के लिए अजीम प्रेम जी फाउंडेशन का एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कनेक्ट होने की। और गरिमा, फॉर यू आल्सो आई एंश्योर कि डाइट दिल्ली हैज मैक्सिमम स्कोर। घुमन एड़ा के साथ तो मैं ज्यादा नहीं कनेक्ट हुआ, अभी पिछले दिनों ही जुड़ पाया हूं, लेकिन दिल्ली की डाइट्स का स्कोर 90 से ऊपर रहा है हमेशा ही, 90% से ज्यादा सीटेट रिजल्ट्स हमने दिया है। हम सीटेट की स्पेसिफिक क्लासेस भी लगाते हैं, इनकी कंटेंट्स एज वेल एज पेडागोजी दोनों पर बहुत फोकस रहता है। तो गरिमा, यू विल आल्सो लर्न अ लॉट फ्रॉम दीज स्टूडेंट्स, एंड दीज ऑल आर वेरी हार्ड वर्किंग। इनका सिलेक्शन मेरिट बेस पर है और 90% से ऊपर स्कोर के सारे विद्यार्थी हैं, एंड दे ऑल आर वेरी वेरी एस्पिरेंट। अपनी मर्जी से इन लोगों ने इस प्रोफेशन को चुना है। दे आर गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड टीचर्स इन फ्यूचर। दिस आई एम वेरी वेरी होपफुल। इट्स कंप्लीटली एविडेंट। आज के जो रिस्पॉन्सेज मेरे को मिले, दे वर, इतना इंटरैक्टिव सेशन था, जितना मेरा प्लान था वो भी मैंने कंप्लीट नहीं कर पाई। I had to pause in between. I hope your future lesson will be planned accordingly now. Yes, yes. फर्स्ट लेसन की कोई बात नहीं है। सो ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बी विद अस। हम लोग मिलकर के इसको और अच्छे से इजी बनाएंगे मैथमेटिक्स को। जिन लोगों का भी मैथमेटिक्स कमजोर है वो क्वेश्चंस पूछते रहें, क्वेश्चंस पूछेंगे तो फिर और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। जब तक समझ में नहीं आता बेटे आगे नहीं बढ़ना। पेडागोजिकली आल्सो गेट एनरिच्ड एंड एज वेल एज नॉलेज, तो दोनों को ही लेने की कोशिश करिए, स्किल बहुत अच्छे से डेवलप करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारा एफर्ट है ये बहुत अच्छे फ्रूट्स लाएगा। थैंक यू सो मच गरिमा, थैंक यू सो मच, वंडरफुल फर्स्ट। पूरा टाइम नहीं जुड़ पाया, बहुत ब्रीफ आप लोगों से मिल पाया। आई होप एक अच्छी शुरुआत ये रहेगी, और हम इसको अब और एडवर्टाइज भी करेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि इसको हम यूट्यूब पर ले जाएं गरिमा, इफ यू अलाउ। That is no problem with me. I have no problem. कोशिश करते हैं कि इसको यूट्यूब लाइव करते हैं ताकि बाकी डाइट्स भी सीख पाएं इससे।
ठीक है, Yes, कर of दें। course. Yes, of course. I'm already working with Keshapuram Diet on this. करता हूँ स्टाफ से, और इसकी तैयारियों के साथ कल से हम कोशिश करेंगे कि हम इसको कर पाए। पर इसका मुझे एक शेड्यूल आप दे दीजिए कि एवरी डे कौन सी डेट पे क्या आएगा, सो दैट हम एक शेड्यूलिंग कर लेंगे। I'll do that. I'll do ठीक है, that. कॉल कर लेना, इसके बाद फिर हम बैठ करके थोड़ा सा, ताकि मैं एक पोस्टर बना करके एडवर्टाइज कर दूंगा और SCRT को भी जमा कर दूंगा। ठीक है सर, श्योर। स्टूडेंट, आर यू हैप्पी? यस सर, वी आर हैप्पी Yes, अ लॉट। sir. और तो कुछ कहना, किसी और स्टूडेंट को कुछ कहना हो तो, दीज आर वंडरफुल क्लासेस। आप सीटेट की तैयारी शुरू करिए, अब बहुत जल्दी ऐड आने वाला है। यस सर, सीटेट किसी की तैयारी स्टूडेंट को और start कुछ कर चुके कहना है हैं। तो, हाँ, गुड गुड गुड। और किसी को कुछ कहना है, फटाफट जल्दी से बोलिए, और फिर नहीं तो हम वाइंड अप करते हैं। ओके, It's a wonderful session, ma'am. We enjoyed a lot. Thank you so much. Thank you. Thank you for being such interactive students here. ओके, थैंक यू गरिमा जी। Thank you, और sir. के रूप में मीना जी अभी हैं कि गई, क्योंकि उनका नेटवर्क इशू था, yes. देखिए मीना जी, मीना लेट्स ma'am. we can stop now. Yes. Okay. Then let's see you all tomorrow, same time, with your cups of coffee. सब नींद उड़ा के आना, please. ओके मैम। Sure. Okay. Bye. Good evening. Bye bye all. Take care. Bye, sir. I hope you have performed very well in the exams. आपके पेपर्स का इवैल्यूएशन आज से स्टार्ट हो गया है। प्री फाइनल के हम लोग बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे रिजल्ट्स को भी, और बाय दैट टाइम आप ये वर्कशॉप अटेंड करिए। बहुत जल्दी हम आपके साथ दोबारा मिलेंगे। ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं। ओके Bye सर। bye. होस्ट ओके मैम। इसको ऑफ कर दें, बाय। अभी ऑफ नहीं हुआ है, अनुराधा जी को करना होगा। अनुराधा जी ऑफ कर दें इसको।